share my screen. Okay, so today I'm going to show you. First of all, tell me, have you got a chance to make a revision on those things? Like yesterday, in the previous session, we discussed about the API and about your queries. So, Srinkla, Rahul, Likita, Inderjit, and Amit. Anybody have any query on that? किसी कोई query है? No, sir. No, sir. So I will do one thing. Today I'm going to show you that how you can configure the API on SOAP and REST. And SOAP part I will do, and REST part I will do, and then we'll start the automation from the REST. Okay, both are same. Don't worry. I will make it the parallel. Okay. So first of all, let me come again. That let me open the documents also. So I have shared the document to everybody, and these are the documents. Like important documents are this one, REST. Let me open all the three, all REST, REST JSON and so. Okay, so what will happen? Let me start the SOAP-based and let me make it quick. Okay, so what will be the in case of SOAP-based service? SOAP-based service में क्या होगा आपका? In SOAP-based service, you will get this WSDL URL. When you get this WSDL URL, other than WSDL URL, you will get the two information like how many operations are in this web service, like for example, add student, get student. So you will get two information about the operation and how you can call the operation using the sample request and sample response. So these two information you can say other than the WSDL one. So when you go to the SOAP API, you will simply click on file, new SOAP project, and you will simply pass the WSDL URL here. Okay, WSDL URL you will paste it here, and here you will do one thing. Simply just give the name of your project. You can give any name. So for example, I'm just giving the name. What name I can say? Let me give any unique name. Let me say API learning with Pradeep, and here I will just take example SOAP. Okay, so I'm giving here you can give the any project name. And what do you mean by project name? The project name which is you are just keeping in your SOAP API. जो SOAP API में आप project बना रहे हो उसका नाम. So whenever click on OK, तो ये क्या करेगा? It will load all the operations from the WSDL. ये WSDL से सारे ऑपरेशन को क्या करेगा? लोड कर देगा. Is it okay? अजी yes or no? Yes, sir. सब लोग बोलते रहे ना yes no, and if any point of doubt you have a doubt you can just ping me. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे WSDL यानी कि सोप बेस्ड सर्विस जो होती है उसमें the main point, you can say the main interacting point is the WSDL. WSDL web service description language. It contains all the information, like you can say how many operations are there and what you need to, how you can call the रिक्वेस्ट, क्या क्या रिक्वेस्ट चाहिए, उसके पैरामीटर क्या होने चाहिए, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन दिस डॉक्यूमेंट. तो हम SOAP API में WSDL को यहाँ पुट करते हैं. ये उस पूरी XML को इट रीड होल द XML एंड जस्ट शोन अस इन द फॉर्म ऑफ UI की इसमें कितने सारे ऑपरेशन है, एंड आल्सो शो द सैंपल रिक्वेस्ट. ये सैंपल रिक्वेस्ट भी दिखाता है. ठीक है, सो दिस इज द यू कैन से SOAP. तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन टेस्ट इट मैनुअली. बहुत क्विकली देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल लेट मी से गेट ऑल स्टूडेंट. सो गेट ऑल स्टूडेंट इन केस लेट मी डबल क्लिक ऑन इट. इसने सैंपल रिक्वेस्ट दिखाई है. I told you that this is SOAP API Pro, but in case of free version, you will see only two tabs will be visible, raw and XML. And also it is recommended that whenever you are testing, make sure your XML should be selected in SOAP API, क्योंकि SOAP API किसको सपोर्ट करता है? XML. ठीक है. दूसरा यहाँ पे the most important thing is that in SOAP based service, how it is different from the rest. पहला कि SOAP में जितने भी जो पैरामीटर्स होते हैं वो इन 3 टैग के अंदर होते हैं. यू कैन से एनी डेटा, एनी इनपुट डेटा विच इज इन द रिक्वेस्ट दैट विल बी रैप्ड इन दिस 3 टैग्स. तो कोई भी जो आपका इनपुट का डेटा होगा वो उसके अंदर ये 3 टैग होने मस्ट है, एनवेलप, हेडर और बॉडी. मेरी बात समझिए, क्लियर है? बिना इन 3 टैग के सर्विस में आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी. एक्चुअल डेटा आप इसके अंदर होता है. तो यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है, तो आप देख रहे हो कोई भी इनपुट नहीं है.
लेकिन ये 3 टैग होना मस्ट है, इनके 3 टैग के बिना ये कभी स्ट्रक्चर पूरा होता नहीं, ठीक है। सर और यहाँ पे हेडर एंड बॉडी अंडरस्टूड है, एनवेलप मतलब एनवेलप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एन एनवेलप? एनवलप को देखो, इसको क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या कहते हैं इसको, एनवलप और ऐसा नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि जब सोप बेस्ड सर्विस आई थी तो दे ट्राई टू कंपेयर द पोस्टमैन, ठीक है, उन्होंने इसको पोस्टमैन से कंपेयर किया। यू आस्क्ड मी वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि ये जब इनिशियल आई थी तो इनको सोप बेस्ड सर्विस को कैसे इन्होंने डिफाइन किया कि भाई इसमें एनवलप है, हेडर है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी बात आपने करी है, इससे आपके लिए लर्निंग भी आसान हो जाएगी। आई डोंट नो अबाउट द ऑल ऑफ यू गाइस, लेकिन आपने कभी पुराना सिस्टम देखा पोस्ट का, जो आपको चिट्ठी आती थी पोस्ट? एनीबॉडी हैव सीन? जी सर, पोस्ट कार्ड वो येलो कलर वाला। तो उसमें उससे जो पोस्ट कार्ड आता था उसके साथ पहले जो एक्चुअल पहले जो चिट्ठी का प्रोसेस था वो था कि एक उसमें आपको एक एनवलप, आप चिट्ठी लिखते थे ऐसे, सपोज टेक द एग्जांपल दिस इज योर लेटर, तो आपने यहाँ पे लेटर में कुछ भी लिख दिया, जो भी लिख दिया, जो आप लिखते थे, जो भी लेटर लिखा, ठीक है। इस लेटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती थी, उसका एक फॉर्मेट भी होता था, है ना, जो भी इसके अंदर आपको लिखना है वो। अब इस लेटर को हम देते कैसे थे, कैसे दूसरी जगह पहुंचाते थे, बहुत देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस लेटर को दूसरी जगह कैसे पहुंचाते थे, पहले हम लेते थे एक एनवलप, अगर आपको याद हो तो एनवलप मतलब कोई एनवलप, बट यू कैन से लिफाफा, जो भी ऐसे एक एनवलप होता था, उसका सिंबल ही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे ऐसे सिंबल होता था, ऐसे एनवलप होता था। हाँ जी। Yes, sir. तो पहले करते, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रहा हूँ कि हम करते क्या थे। ये जो हमारा लेटर है, लेटर का मतलब इसके अंदर क्या है, जो कंटेंट, मेरी बात समझ रहे हैं, इस लेटर के बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी बता देता हूँ, जैसे कि लेटेस्ट मेरा क्या हुआ था आप कह सकते हो कि लेटेस्ट मेरा भी जो यूट्यूब है उसमें मोनेटाइजेशन हो गया, तो उसमें एक पासवर्ड आता है। तो पासवर्ड कैसे आता है, एग्जांपल करो कि एक पेपर बना था, इस पेपर में ऐसे लिखा हुआ था पासवर्ड, जिससे कि मुझे पैसे मिलेंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ था, RRT करके। अब ये पासवर्ड किस में लिखा हुआ है, इस पेपर में, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, यस और नो? Yes, sir. तो इस पेपर में पासवर्ड लिखा था, इसको मेरे तक पहुंचाने के लिए कैसे किया गया, इस पासवर्ड का जो पेपर लिखा था इसे पहले इस एनवलप के अंदर डाला गया, ध्यान से देखना, इस एनवलप के अंदर डाला गया, और इस एनवलप के अंदर डालने के बाद इसको कर दिया लॉक, जो भी आप जैसे भी कहते हो लॉक कर दिया। अब इसका जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें किसी को पता है क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? Address from हाँ to. जी, हाँ जी, इसके अंदर एक बहुत इंफॉर्मेशन होती थी, यहाँ लिखते थे टू, यहाँ लिखते थे फ्रॉम, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, कि इन्हीं एक्चुअली इसी फॉर्मेट को देखते हुए उन्होंने सोप के टैग बनाए। उन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, ये पूरी किस में बंद होके जा रही है, एनवलप में। मेरी बात समझ रहे हो? ये सारा लेटर किसमें जा रहा है, बंद होके, ये पहले लेटर इस एनवलप में जाएगा, और एनवलप किसके पास जाएगा, डेस्टिनेशन के पास। यस और नो? Yes, sir. तो इसीलिए इन्होंने सोप के टैग में जो सबसे बाहर वाला टैग होता है उसको बोलते हैं एनवलप, मतलब जो भी जाएगा वो किस में जाएगा, एनवलप के अंदर। ये देखो, ये एनवलप का ओपन है और ये एनवलप का क्लोज है, सब कुछ जाएगा इसके अंदर। अब ध्यान से देखना, अब आता है इसमें बॉडी पार्ट क्या होता है। बॉडी पार्ट का मतलब इसके अंदर का डेटा, जो कंटेंट है। अब मैं बताऊं बॉडी किसको बोलते हैं, बॉडी क्या हुई, जो ये पासवर्ड वाला लेटर है इसको क्या बोलेंगे, बॉडी। और ये बॉडी आपको दिखाई नहीं देगी, अगर ये एनवलप के अंदर होगा तो बॉडी दिखाई देगी आपको? No. तो एनवलप के अंदर ये लेटर चला गया तो आपको एनवलप का जो हेडर, ये जो आपका जो भी बोलो कि यू कैन से इट, जिसको मैं कलर भी कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है जो इसके अंदर का लेटर है वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको एनवलप दिखाई देगा बाहर से। दूसरा, एनवलप जब दिखाई देता है तो इसके साथ आपकी कुछ इंफॉर्मेशन और देते हैं क्या, तो ये एनवलप हो गया आपका, जो एनवलप है इसको बोलते हैं एनवलप, और ये जो अंदर का कंटेंट है इसको बोलते हैं बॉडी, और इसके साथ एक इंफॉर्मेशन जो अलग से लगा के देते हैं उसको बोलते हैं हेडर। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. हेडर को मतलब समझ सकते हो? एनवेलप मैं समझ गई सर, लेकिन एनवेलप मतलब कुछ इंक्रिप्शन भी करता है, मतलब कुछ हाइड भी करता रहता। एक्चुअली इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप मुझे बताओ, अगर मैं एनवलप कह रहा हूं तो अगर मैं इस लेटर को अंदर से डाल दूंगा तो जब तक एनवलप आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक एनवलप नहीं खोलोगे आप लेटर को देख नहीं सकते। मेरी बात समझ गए? तो सेम चीज यहाँ पे देखो, इसीलिए बहुत आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको रिलेट भी कर रहा हूं। देखो, एक्चुअली यहाँ पे जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी उसी सिमिलरिटी बॉडी की तरह होती है जिसको बोलते हैं HTTP बॉडी।
मेरी बात सुनो, आपको इससे करने से पहले अगर किसी को डाउट हो रहा है तो एक चीज और बताते हैं। देखो टॉपिक से टॉपिक निकल आते हैं। आपको पता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने उस दिन बता भी रहा था, ये आपका कोई ब्राउजर कह लो या कोई भी है जहां से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, और ये है जहां पे रिक्वेस्ट जा रही है। तो रिक्वेस्ट जाने का एक फॉर्मेट होता है, मेरी बात समझना। जब यहाँ से कोई रिक्वेस्ट बनती है तो बन के जब ये सर्वर पे जाती है तो इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? उस फॉर्मेट में कई चीजें मिलकर रिक्वेस्ट बनती है। उस दिन बता भी रहा था, पहला क्या होता है? URL। क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है पहला? URL. पहला होता है URL। तो URL आपको पता भी, आपने देखा भी होगा कैसे HTTP करके ऐसे ही कुछ बना होता है। HTTP ऐसे करके जो भी Amazon लोकल होस्ट करके ऐसे देखो ऐसे बना होता है। मेरी बात समझिएगा, ये होता है URL। इसमें कुछ भी लिखा होगा Amazon, ये होता है URL। दूसरा पार्ट जो आपका होता है, जब इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट बन के जाती है, तो रिक्वेस्ट अकेले रिक्वेस्ट का मतलब केवल रिक्वेस्ट ऐसा नहीं होता है कि URL होता है। URL के साथ कई चीजें मिलकर आपकी रिक्वेस्ट बनती है। तो URL का जो पूरा पैकेज है उसमें एक जो रिक्वेस्ट बनती है उसमें URL का पार्ट होता है। दूसरा पार्ट किसका होता है? हेडर का। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? हेडर का। Yes, sir. तो URL होता है, हेडर होता है, और एक होता है मेथड। ये तीन चीजें तो आपकी मैंडेटरी है, इनके बिना रिक्वेस्ट जा ही नहीं सकती। मेरी बात समझा? और अगर आपका मेथड गेट के अलावा है, गेट के अलावा अगर कोई भी मेथड है, ध्यान से रखना, गेट के अलावा अगर कोई भी मेथड है तो इस रिक्वेस्ट में एक चीज और जाती है जिसको बोलते हैं बॉडी। मेरी बात समझ गए हैं? तो आपके रिक्वेस्ट बनाने के लिए, यानी कि अगर मैं इसको मान लू, इस ब्लॉक को, इस रेड वाले ब्लॉक को थोड़ी बात देर के लिए समझ लो रिक्वेस्ट, तो आपके रिक्वेस्ट को बनाने के लिए कितने कंपोनेंट पार्टिसिपेट लेते हैं? कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें। URL, हेडर, मेथड और बॉडी। बॉडी मैंडेटरी नहीं होती है। बॉडी किस पे डिपेंड करती है कि मेथड कौन सा चूज किया है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी, इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. अब मैं Yes, आपको sir. बताता हूँ कि सोप बेस्ड सर्विस में क्या होता है कि बॉडी देना मस्ट होता है। सोप बेस्ड सर्विस में बॉडी देना क्या होता है? हाँ जी बोलिए, बॉडी देना क्या होता है? अरे हाजी ना जी, कुछ तो बोलो। Must be that, sir. अब बॉडी देना मस्ट होता है, तो बॉडी अगर देना मस्ट होगा तो बॉडी के लिए मेथड कौन सा यूज होता है? उसके लिए पोस्ट। जो बॉडी देने के लिए मेथड चूज किया गया था HTTP का, जो मेथड स्टैंडर्ड बनाया गया है कि बॉडी उसे तब मिलती है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वो होता है कब? पोस्ट। इसीलिए उसने क्या किया, सोप बेस्ड सर्विस में बॉडी भी दी आपको और साथ में मेथड दिया पोस्ट। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे कि ये मेरा बन किया जा रहा है। ये देखो, ये रिक्वेस्ट बन रही है। जरा रॉ पे क्लिक करो। अगर यहाँ रॉ पे क्लिक करोगे, पहले मैं काम करता हूँ इसको आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो रॉ पे अगर देखो मैंने क्लिक किया तो रॉ में आपको क्या क्या दिख रहा है? ध्यान से देखना। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? बॉडी का पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? हाँ Body जी, part. हाँ। लेकिन ये जो नीचे का पूरा पार्ट है ये आपका है किसकी बॉडी? HTTP, यानी कि जिसकी बॉडी क्या है? जो बोलेंगे रिक्वेस्ट की बॉडी। क्या बोलेंगे? Request body. Yes, sir. आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी। ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना। ये जो बॉडी है ये आपकी जो रिक्वेस्ट बनी इसकी बॉडी है। और यहाँ पे मैंने बोला कि जो बॉडी दिखती है वो कौन सी दिखती है? नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी। यानी ध्यान से देखना, HTTP की बॉडी के अंदर, HTTP वाला जो बॉडी होती है उसकी बॉडी के अंदर फिर से क्या होता है? एनवलप, हेडर, बॉडी और ये सब। यानी कि ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ये अपने आप में पूरा किसका पार्ट है? HTTP यानी रिक्वेस्ट की बॉडी का पार्ट। और इसके अंदर खुद क्या होती है? पूरा ये स्ट्रक्चर सोप का। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. इसको समझने के लिए साथ में एक काम और करते हैं, दोनों चीज पैरेलल देखो। अगर केवल सोप देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, इसको देखने के लिए दोनों को पैरेलल देखो। तो एक काम करो, इसको भी बंद करो। एक ऐसी कॉमन चीज दिखाऊंगा आपको जिससे आपके दोनों डाउट क्लियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, गेट स्टूडेंट बाय ID को देख लो, या देख लो एड स्टूडेंट जिसपे पोस्ट यूज होता है। ध्यान से देखना, मैंने इसको ओपन किया, XML को किया, इसमें आपको एनवलप दिख रहा है, बॉडी दिख रही है, सबको दिख रही है। Yes, sir. इसकी बॉडी में आपको मैं 3 डेटा दिखा रहा हूं, एक है नेम, एक है एज और एक है सब्जेक्ट। सबको दिख रहा है? Yes, sir.
अब ध्यान से देखना, इसी मेथड को, ये सोप का मेथड है और इसी को मेथड को मैं आपको दिखाऊंगा रेस्ट में, रेस्ट बेस्ड एपीआई में दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखना, इसको ऐसे ही रहने दो और इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही रहने दो और एक प्रोजेक्ट और बनाते हैं, फाइल न्यू रेस्ट प्रोजेक्ट। तो जब रेस्ट प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो पहला डिफरेंस आप समझ लो, सोप बेस्ड सर्विस में जो आपका पॉइंट होता है, जो इंटरेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है विजडल, और रेस्ट बेस्ड सर्विस में जो आपका इंटरेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर रेस्ट बेस्ड सर्विस का यहाँ से एग्जांपल लूं, ये वाला रेस्ट वाला, इसको एडिट करता हूं तो इसमें एक यूआरएल दिखाता हूं। पहले सबसे पहले ये वाला जिसका नाम है ऐड स्टूडेंट, तो मैंने यहां से किया यूआरएल कॉपी। ध्यान से देखना, इस यूआरएल को मैंने यहाँ कॉपी किया और मैं आपके रेस्ट में प्रोजेक्ट में गया और मैंने यहाँ यूआरएल दे, यूआरएल देने के बाद मैं करूंगा ओके, और ये एक प्रोजेक्ट यहाँ बना के लाएगा। इस प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम भी वैसे ही कुछ रख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। इसका नाम रखूंगा मैं एपीआई, कौन हो गया, एपीआई लर्निंग, और यहां पे कर देते हैं साथ में रखते हैं रेस्ट। ठीक है, यहां पे मैंने कर दिया रेस्ट। ध्यान से देखना, इसको ओके करने के बाद ये आपके दोनों प्रोजेक्ट में आपको पैरेलल दिखाऊंगा। ये आपका रेस्ट प्रोजेक्ट है, ये आपका सोप प्रोजेक्ट है। रेस्ट प्रोजेक्ट में मैंने तो सेम काम किया है। ये आपका जो आपका ये ओपन होके आया है, ये इसका मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है क्या, मेथड पोस्ट वाला। यूआरएल मैंने ये डाला, मेथड कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मेथड कौन सा सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट। जैसे ही पोस्ट करेंगे आपको बॉडी दिख रही है यहाँ पे, ये हाँ जी बॉडी Yes. दिख रही है। Yes. इस बॉडी में डेटा डाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाला मैंने इसमें डेटा। अब जब मैं एक साथ आपको कंपेयर करके बताऊंगा ना, तब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, और ये जिसको डिफरेंस समझ में आ गया उसको रेस्ट की चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट की चीजें तभी क्लियर होंगी जब सोप समझ में आएगा। अब मैं इसका खोलता हूँ रॉ। ठीक है, तो पहले काम करते हो, ये रॉ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पहले मैं इसके यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ, ये XML किया, इस रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड बन गया है, इसका भी XML खोल देता हूँ और इसका यहाँ पे सॉरी, इसका मैं रॉ खोल देता हूँ और इसका भी रॉ खोल देता हूँ। ऐसे ही इसको यहाँ रखो और यहाँ पे इसका भी डेटा यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसका भी रॉ खोल दो और इसका भी रॉ खोल दो। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक साथ दोनों चीजें दिखाऊंगा, मुझे सिर्फ बताना डिफरेंस क्या है। दोनों से मैंने रिकॉर्ड ऐड किया है, यस और नो, Yes. Yes. दोनों से मैंने ऐड स्टूडेंट का ऑपरेशन जो परफॉर्म किया है। ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होती है बॉडी, ये पूरी की पूरी क्या होती है, बॉडी। किसकी बॉडी, लेकिन रिक्वेस्ट की बॉडी। किसकी बॉडी होती है, Request की body. बिल्कुल सही, ये पूरी आपकी होती है रिक्वेस्ट की बॉडी। तो इसमें जो रिक्वेस्ट की बॉडी आपको दिख रही है, वो बॉडी अपने आप में खुद अंदर जाके क्या बन रही है, एक एनवलप का स्ट्रक्चर बना रही है। मतलब बॉडी के अंदर सोप का एनवलप है, हेडर है और सोप की बॉडी है, फिर उसके अंदर डेटा है। यानी कि जो सोप का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली क्या है, जो सोप का पूरा स्ट्रक्चर है वो एचटीटीपी की क्या है, बॉडी। वो एचटीटीपी की क्या है, Body. ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट की बॉडी है। अब अगर मैं आपको दूसरा वाला दिखाऊं तो इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या कोई बॉडी दिख रही है, ये जो बॉडी दिख रही है ये किसकी बॉडी है, एचटीटीपी की। किसकी बॉडी है, HT. अब एचटीटीपी की बॉडी में क्या कोई आपको सोप का टैग या कोई भी टैग दिख रहा है, आपके डेटा के अलावा कोई भी फालतू का टैग दिख रहा है, No. नहीं। तो ध्यान से देखना, आपके रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि रेस्ट में जब कोई डेटा जाता है यानी बॉडी में, तो एक्चुअली बॉडी में सिर्फ क्या जाता है, आपका डेटा। ध्यान से देखना, अब इसको मैं एडिट प्लस में दिखा रहा हूं आपको कि जब भी आपका रेस्ट बेस्ड एपीआई होती है तो उसमें जो बॉडी का डेटा होता है, बॉडी के अंदर केवल क्या होता है, डेटा। क्या होता है बॉडी के अंदर, डेटा। स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, नेम इज सब्जेक्ट, तो ये डेटा है। लेकिन अगर इसी डेटा को सोप बेस्ड सर्विस में अगर मुझे करना होगा तो ध्यान से क्या करना होता है, ये जो डेटा होता है ये डेटा किसके अंदर रैप होके जाता है, किसके अंदर रैप होके, तो सोप एनवलप के टैग है। यानी ये डेटा तो रहेगा ही, इसके ऊपर क्या बनेगा, ये बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको, ये देखो डिफरेंस।
अब आप डिफरेंस समझना यहां से, डिफरेंस क्या है कि दोनों में डेटा एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ इतना है, डेटा यही है ना भाई, एक स्टूडेंट की डिटेल डालनी है तो क्या क्या डेटा भेजना पड़ेगा, नेम, Yes. एज, सब्जेक्ट। तो रेस्ट कहता है कि केवल भेजो डेटा, रेस्ट में केवल क्या मांगता है बॉडी में, डेटा। लेकिन सोप बेस्ड सर्विस में जो डेटा जाता है, जो बॉडी में डेटा जाता है, वो खुद सोप एनवलप के टैग के अंदर रैप होके जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मेरी बात समझना, वो बॉडी के अंदर सोप एनवलप की बॉडी के अंदर रैप हो गए, यानी कि रेस्ट में जो डेटा होता है उसमें केवल डेटा जाता है, जबकि सोप के अंदर डेटा सोप के स्ट्रक्चर में रैप होके जाता है। मेरी बात समझ गए? सर रेस्ट में हमको एड्रेस नहीं देना पड़ता क्या, मतलब डेस्टिनेशन में कहाँ जाना है? नहीं, वो अभी पहले एक एक करके देखो, पहले बॉडी क्लियर हो गई, बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। यस यस सर। ये देखो बॉडी, यानी सबसे पहले कि रेस्ट में कभी भी आपको अपना जो डेटा देना है उसको डेटा बॉडी में डायरेक्ट जाता है, मतलब बॉडी में डेटा रखो चला जाएगा। लेकिन सोप में जो बॉडी में डेटा जाता है वो बाय डिफॉल्ट डेटा भी जो सोप की सॉरी जो रेस्ट की बॉडी में जो डेटा फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो सोप बेस्ड सर्विस की बॉडी में डेटा जाता है वो खुद पहले सोप की बॉडी में रैप होके जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहां से सर अभी सर इसमें हम अच्छा। कोई सा मेथड यूज करें तो हमें बॉडी भेजनी पड़ेगी, इसमें एनवेलप हमें लगाना ही पड़ेगा ना हाँ, सोप में। तभी मैं कह रहा हूं इसमें कोई भी ऑपरेशन उठा के देख लो, ये टैग और इसके नीचे का टैग ये फिक्स है, इसके अंदर ही आपका एक्चुअल डेटा जाएगा। समझ गए? हाँ जी। रेस्ट में ओके डेटा सर। रेस्ट में डेटा को सीधे भेजते हैं, और सोप में रेस्ट में डेटा को सीधे भेजते हैं, और सोप में किसमें भेजते हैं, सोप की स्ट्रक्चर के अंदर रैप करके। समझ गए? यस सर, गॉट इट। चलिए, अब दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे बहुत अच्छा डिफरेंस देखो, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा, सोप में बोलते हैं कि सोप जो सपोर्ट करती है वो करती है केवल पोस्ट मेथड को। क्यों करती है मैं बताऊं, आप मुझे खुद बताओ। जब सोप के अंदर बॉडी में जो डेटा जा रहा था, सोप के अंदर केवल अगर ये डेटा जाता, मेरी बात समझना, ये जो डेटा जाता है, जब भी कोई बॉडी में डेटा भेजते हैं तो बॉडी में डेटा जाने के लिए कौन सा मेथड होता है, Post. सबसे पहला पोस्ट। और यहाँ पे भी आपको देखो पूरा का पूरा यहाँ पे जो डेटा जा रहा है, ये जो पूरा का पूरा आपको जो डेटा जा रहा है, इसमें पूरा आपको भेजना ही पड़ रहा है। ये अपने आप में पूरी क्या है, ये बॉडी है, और सोप एनवलप बॉडी के अंदर बॉडी है। तो जब भी इसको ये पूरा भेजना है तो उसे पोस्ट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर जब भी कोई डेटा भेजते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है, बॉडी में पोस्ट। तो इसे पूरा का पूरा ये पूरा बॉडी में भेजना था, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा यूज होता है, पोस्ट। तीसरा डिफरेंस ध्यान से देखना। तीसरा डिफरेंस ये है कि अगर मैं कहूंगा आपसे कि सोप के अंदर केवल एक्सएमएल को सपोर्ट करता है, तो ऐसा क्यों करता है मैं बताऊं। आप ऐसे समझो, रेस्ट में मुझे अगर डेटा भेजना है, या तो मैं ऐसे भेज दूंगा, या दूसरा तरीका था कि मैं डेटा को ऐसे भेज देता। ध्यान से देखना, या तो डेटा ऐसे भेजूंगा, या डेटा कैसे भेजूंगा, ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो? या तो पूरा डेटा क्या होगा, पूरा डेटा आपको जो है एक्सएमएल फॉर्म में होगा, या पूरा डेटा जेसन में होगा। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, किसी का भी एग्जांपल ले लो। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं कि अगर मुझे इसको सोप में भेजना होता तो इसमें कैसे भेजूंगा सोप में, इसको बताओ। सोप में अगर मुझे डेटा भेजना हो जेसन फॉर्मेट में तो कहाँ रखा जाएगा, एनवलप में। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज आंसर दिया आपने। एनवलप में मतलब कि देखो मैं यहाँ पे रखूंगा डेटा को। अब आप मुझे खुद आंसर देना, क्या एक्सएमएल के अंदर जेसन का डेटा हो सकता है किसी एक फाइल, जब पूरी रिक्वेस्ट बन के जाएगी तो क्या कोई रिक्वेस्ट कभी आपने देखा है कोई ऐसा फाइल हो जिसके अंदर एमएस वर्ड की फाइल के अंदर एक्सेल की फाइल हो? मेरी बात समझना, फाइल का टाइप हमेशा क्या होता है, सेम होता है। फाइल का टाइप हमेशा क्या होता है, फाइल का टाइप सेम होता है। एक फाइल के अंदर दो टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो? No, sir. अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है फिर से बताऊं, किसी भी हाँ, फाइल सर। को किसी फाइल से कैसे पता चलता है आपको किस टाइप की फाइल है, जो उसका क्या होता है, एक्सटेंशन। किसी फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल और डॉट जेसन दोनों हो सकता है। No. कोई भी फाइल उठा के दुनिया की बता दो मुझे जिसमें एक्सटेंशन दो एक ही टाइप का। अब यहाँ पे अगर मुझे इसके अंदर सोप एनवलप के अंदर
डेटा भेजना था तो जेसन इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि बाहर का जो फॉर्मेट सोप का होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सएमएल। तो एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर कोई डेटा वही बन के जा सकता है जो खुद क्या हो, एक्सएमएल। तो इसके अंदर यही डेटा जा सकता है, कैसा, जो किस फॉर्म में हो, XML। इसीलिए सबसे बड़ा डिफरेंस, सोप केवल एक्सएमएल को सपोर्ट करती है क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है कि डेटा जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर तो चूंकि ये एक्सएमएल में बना है एनवलप, तो डेटा भी बनेगा एक्सएमएल में। यहाँ पे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, इसको डेटा भेजना है, डेटा चाहे एक्सएमएल में बना दो चाहे जेसन में, क्योंकि इसका बाहर किसी में लपेट के रैप होके नहीं जा रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. तीन डिफरेंस कभी मत भूलना। पहला डिफरेंस, सोप के अंदर बाय डिफॉल्ट पोस्ट मेथड यूज होता है क्योंकि इसमें अगर कुछ डेटा नहीं भी गया, अब देखो बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूं जिससे भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आप, मैंने बोला कि जब भी कोई डेटा बॉडी में जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बॉडी में जो डेटा जाएगा तो आपको बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, किसका, ध्यान से देखना, उसका गेट वेस्ट एपीआई का। अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट है, गेट ऑल स्टूडेंट का मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ सोप यूआई में। यहाँ किया मैंने, इसे रन किया, इसके रॉ पे जाना, रॉ में जाने के आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बॉडी में कोई डेटा दिख रहा है, सही से बताना। No, sir. लेकिन फिर भी क्या बन के आ गया है, लेकिन फिर भी एनवलप बना है, हेडर बना है, बॉडी बना है, भले डेटा नहीं है फिर भी एनवलप है। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. लेकिन यही चीज मैं आपको रेस्ट में दिखाता हूं, ध्यान से देखना रेस्ट में, और मुझे बताना कि रेस्ट में जब मैं गेट ऑल स्टूडेंट को कॉल करता हूं तो मैं आपके सामने कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, न्यू, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं इसी प्रोजेक्ट में, न्यू, और यहाँ पे करेंगे रिसोर्स, और मैं आपके सामने, ध्यान से देखना, बहुत ये चीज समझ गए ना तो एक्चुअली जो काम की चीज आपकी है ना वो यही है, बाकी सब चीजें तो लर्न करना बहुत आसान है। गेट ऑल स्टूडेंट को यूआरएल को मैंने कॉपी किया, ध्यान से देखना, रेस्ट में से यहाँ पे गया, यूआरएल को डाला मैंने और यहाँ पे किया ओके पे क्लिक। ध्यान से देखना, ओके पे क्लिक करने के बाद मेथड गेट होना चाहिए, सही था? Yes, sir. ठीक है, आपको मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, सारा डिटेल सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बता देना। अब जरा रॉ पे क्लिक करो, क्या रॉ में नीचे कोई बन के आ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे बॉडी आती है कुछ बन के आ रहा है? नहीं। ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ आपको, कहीं नहीं मिलेगी ये। जब मैंने गेट को कॉल किया, क्या नीचे इस पोर्शन में जहां पे मैं आपको बोलता हूँ हमेशा बॉडी आती, कुछ डेटा दिख रहा है? नो। No. क्योंकि गेट में मुझे इनपुट में कुछ देना ही नहीं था, लेकिन यही काम जब मैं रेस्ट में कर रहा हूं तो इनपुट तो वहां भी नहीं देना है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां पे फिर भी क्या बन के जा रही है, बॉडी, भले वो क्या हो, ब्लैंक। समझ में आया? Yes, sir. कि सोप में बिना एनवलप, हेडर और सोप की बॉडी के काम हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं भेज रहा हूं तब भी मुझे ये चीज बॉडी में भेजनी है HTTP के, और जब भी आपको HTTP बॉडी में, HTTP की बॉडी में कुछ भी भेजना हो, मेथड हमेशा क्या होगा, पोस्ट। आज ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखो ये बिल्कुल फालतू चीज है, कोई काम की नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। एनवलप का टैग बना, हेडर का बना, बॉडी का बना, कोई इनपुट नहीं देना मुझे सारे, लेकिन फिर भी बॉडी बनेगी जिसमें ये फालतू की चीज जाएगी। और ये क्योंकि रूल बना है तो मेथड हमेशा यूज होगा पोस्ट, क्योंकि ना भेजने पे भी इतना डेटा तो जाएगा। मेथड हमेशा पोस्ट, मजबूरी है। समझ में आया? सर यहाँ पे हम ऑल स्टूडेंट भेज रहे हैं लेकिन ना ऑल स्टूडेंट ये इसमें ऑल स्टूडेंट ये टैग बना है, ये टैग बना है जो आपको ये बता रहा है कि मेरा ऑपरेशन जो है कौन सा कॉल हो रहा है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये आपको ऑपरेशन बता रहा है कौन सा कॉल हो रहा है, लेकिन इसमें कोई डेटा जा रहा है, आईडी या किसी का नेम, सब्जेक्ट कुछ जा रहा है? नो सर। ये केवल एक आपको ऑपरेशन बता रहा है कि मेरा ये ऑपरेशन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई इनपुट लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि आप बताओ, अच्छा इनपुट की क्या जरूरत है? आप जब अपने टेबल में सारे रिकॉर्ड निकालना चाहते हो तो इनपुट कहाँ देते हैं, वेयर क्लॉज में देते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सब कुछ ले आओ, और इनपुट का मतलब वेयर आईडी इक्वल टू, यस और नो? यस सर। तो इसमें कहाँ आपको कोई इनपुट की जरूरत थी, लेकिन फालतू में इसने बनाया, क्योंकि मजबूरी है, रूल है सोप का, सर्विस का, कि मुझे ये तीन चीजें, एनवलप, हेडर, बॉडी,
चाहिए, चाहे डेटा भेजो या ना भेजो। नहीं भेजा तब भी बेचारे को ये बनाना पड़ा, और मेथड क्या चूज करना पड़ा? पोस्ट। तो जबकि यही काम अगर मैं रेस्ट में करता हूं तो मैंने डेटा नहीं भेजा, कोई डेटा नहीं भेजना है, तो बॉडी भी नहीं बनी, इसलिए मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? Yes. फ्रेंड समझ में आया? सर एक एक चीज मतलब इसमें जैसे हमने गेट के थ्रू सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकाल लिया, तो आउटपुट दोनों में सेम है। सोप से भी हमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिल रहा था तो, या तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको रिक्वेस्ट बनाते वक्त सोप का सबसे पहला रूल कि रिक्वेस्ट में डेटा भेजने के लिए मजबूर करता है आपको कि एनवलप हेडर बॉडी होनी चाहिए सोप की। आउटपुट में तो दोनों चीजें सेम आएगी। अब आउटपुट में तो देखो, आउटपुट में अगर मैं यहाँ रॉ पे क्लिक करूं तो ये आउटपुट आ रहा है, तो देखो बॉडी में तो आएगा ही, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा वो जेसॉन फॉर्मेट में था आउटपुट सर। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली मुझे उसमें सोप में जेसॉन फॉर्मेट में नहीं दिख रहा था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज। जी जी नहीं, आप एक चीज जो अभी मैं बता रहा हूं, आज का जो अभी तक बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें आपको समझ में आ गया, आपका सोप का और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक लाइन छोड़ के जो डेटा दिख रहा है, मैंने क्या बताया था, इसके गैप के बाद ये क्या होता है? बॉडी। डेटा बॉडी में आ रहा है, किसकी बॉडी में आ रहा है? रेस्पॉन्स की बॉडी में आ रहा है। यस सर। तो आपका देखना ये एक मजबूरी है, इसीलिए चूंकि बॉडी केवल किस में नहीं देनी पड़ती है? गेट में। और सोप के केस में आपको बॉडी हर कीमत पे देनी पड़ती है। कोई भी मेथड उठा के देख लो, गेट ऑल स्टूडेंट दिखाया तो जरूरत ही नहीं थी। गेट स्टूडेंट आईडी में देखो, इसमें मुझे एक इनपुट देना था, लेकिन इनपुट देखो कहां दे रहे हैं? सोप में इनपुट देखना ध्यान से। मैं गया रॉ में, यहाँ पे पहले एक्सएमएल में, यहाँ पे एक इनपुट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपका आईडी कहां भेज रहा है? आईडी किस में डाल के भेज रहा है? बॉडी में। भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? यस सर। देखो मैंने यहाँ 4 डाला, मैं यहाँ एक्सएमएल पे क्लिक करूंगा और इसको डालूंगा। डेटा आपका किसमें? 4 की जगह कोई ऐसी डाल दो जो हो। अरे आप लोग के लिए सब डिलीट कर डाली गया। हाँ, एक का डेटा आया, एक डेटा कहाँ गया? ध्यान से देखना, सोप के हेडर के बॉडी के अंदर मैंने डाला, यानी बॉडी का जो सोप की बॉडी थी उसमें डेटा डाल के भेजा ना। भेजा कि नहीं भेजा? Yes. भेजा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने भेजने के लिए आपसे जानते हो क्यों बोला? क्योंकि ये कोई भी डेटा यूआरएल में भेजता ही नहीं है, इसके पास बॉडी होती है, तो ये डेटा भेजेगा तो सोप की बॉडी के अंदर, नहीं तो कहीं बाहर से भेजेगा ही नहीं। अब इसने आईडी भेजने के लिए इस्तेमाल किया किसका? बॉडी का। अगर यही गेट स्टूडेंट बाय आईडी अगर मैं आपको रेस्ट में दिखाऊं ना, तो देखो फिर ध्यान से देखो, उसमें इसको जरूरत ही नहीं थी बॉडी बनाने की, क्योंकि आईडी कहां भेज सकता है? गेट में यूआरएल में लगा के। ध्यान से देखना, ये देखो। अब मैं आता हूं गेट स्टूडेंट आईडी पे, इसके लास्ट में जो दिख रहा है आईडी, ये होता है यूआरएल पैरामीटर, इसको बोलते हैं यूआरएल पैरामीटर। ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है। ये किया, ये किया, इसके अंदर ध्यान से देखना, ये आईडी दिख रही है आपको? Yes. अब ये आईडी जो दिख रही है, ये आईडी आपके बॉडी में नहीं जा रही है, क्योंकि अगर बॉडी में जा रही होती तो मेथड क्या होता? Post. वेरी गुड। और यहाँ पे मैं देखो आपको दिखाता हूँ, उसी रिक्वेस्ट को बनाता हूँ 1, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, और आपको डेटा भी वही आ रहा है। बस ध्यान से देखना कि रॉ क्या बन रहा है। क्या रॉ में कोई बॉडी दिख रही है? रॉ में No, sir. क्योंकि गेट में नहीं होती है, तो वो आईडी जा कैसे रही है? यूआरएल के लास्ट में 1 दिख रहा है, ये देखो स्लैश करके। Yes, sir. तो आपके में गेट में ऑप्शन होता है, गेट में क्या ऑप्शन होता है कि आप अपने पैरामीटर को पाथ में भेज सकते हो, क्वेरी में भेज सकते हो, लेकिन पोस्ट में हमेशा डेटा कहां भेजते हैं? बॉडी में। समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. तो पोस्ट में अगर गेट स्टूडेंट बाय आईडी देखूं तो मजबूरी है, बेचारा यहाँ नहीं भेज सकता, क्योंकि ये पोस्ट का बनता है। तो यहाँ कभी अपनी सर्विस में ऐसे नहीं लिख सकता क्या? /1 ना, ये लिख सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो उसको मजबूरी में डेटा कहाँ रखना पड़ता है? बॉडी में। सोप में अंदर गांठ बांध के रख लो, सोप में पोस्ट के अलावा कोई ऑपरेशन चलता ही नहीं, और जब चलता नहीं है तो सारा काम कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। और जब सारा काम बॉडी के अंदर होता है तो बॉडी के अंदर वाले काम को बोलते हैं सिक्योर।
कोई भी काम बॉडी के अंदर होगा तो उस डेटा को क्या मानते हैं हम? सिक्योर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि गेट का काम ही होता है डेटा को फेच करना। गेट के यूआरएल में अगर कोई भी पैरामीटर पास होता है तो उसे सिक्योर नहीं मानते हैं। क्यों बताओ? आपको अगर मैं यूआरएल यहां से, ये यूआरएल यहां से दिखा रहा हूं रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो आपको अपने किसी भी टैब में, ब्राउजर का एग्जांपल ले लें, यूआरएल वाली फील्ड सबको दिखती है, ये यूआरएल सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो ये डेटा जो भी आपके यूआरएल में जाता है सिक्योर नहीं होता, सबको दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है वन क्या है। और इसका एग्जांपल लो, अगर कहीं लॉगिन हो रहा है और लॉगिन में कभी कोई ऐसे डेटा चला जाए, ऐसे देखना जाता भी है, जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है, ऐसे जाता है यूजर नेम इक्वल टू प्रदीप एंड आ गया एंड पासवर्ड इक्वल टू ये, तो ये लॉगिन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? लॉगिन कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? लेकिन जब ये रिक्वेस्ट जा रही है तो आप सबको दिख रहा है ना यूजर नेम पासवर्ड क्या है? यस सर। अब ये यूजर नेम पासवर्ड अगर गेट से भेजूंगा तो कभी सिक्योर नहीं होगा, इसीलिए यूजर नेम पासवर्ड भेजा जाता है बॉडी से। बॉडी का मतलब यहाँ पे यूआरएल सिर्फ इतना दिखेगा, और ये इसको भेजने के लिए ब्राउजर में बॉडी कैसे बनाते हैं? जो आपकी यूआई होती है, यूआई पे दिखता है ना यूजर नेम एंटर पासवर्ड। तो जो भी डेटा यूआई में जो वाला पार्ट होता है ना बीच का, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसका सारा पार्ट जो कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। तो इस बॉडी से अगर कोई डेटा भेजना होता है ब्राउजर में तो उसी के लिए क्या बनाते हैं? यूआई। अगर आपको अपने यूआरएल में कोई डेटा भेजना होता है उसके लिए यूआई की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? यस सर। किसी को नहीं समझ आया बताना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज रेस की थी सिक्ला ने, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि आपको एक एक डिफरेंस समझ में आया। यहाँ मुझे मजबूरी है आईडी, जबकि अगर मैं चाहूँ यूआरएल में डालूं तो सोप में नहीं डाल सकता, क्योंकि सारा काम करना ही बॉडी में, और जब बॉडी में करना होता है तो पोस्ट होता है, और जो भी काम पोस्ट के थ्रू होता है वो सिक्योर होता है। तो सारे पॉइंट जो डिफरेंस है वो एक दूसरे से लिंक। ठीक है? अच्छा, सिक्योर क्यों होता है? मैंने क्यों बोला एनवलप से क्या फायदा है? कि जब भी इसमें डेटा जाएगा, क्योंकि डेटा हमेशा एनवलप में मतलब रैप होके जाता है, तो डेटा मानते हैं बहुत सिक्योर तो नहीं लेकिन सिक्योर होता है। लेकिन गेट में तो डेटा कोई जरूरी नहीं है ना, रेस्ट में आप गेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्या गेट सिक्योर होगा? यस सर। नहीं। गेट में जो भी आप इनपुट डेटा डालोगे वो कभी सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि वो यूआरएल में दिखता है। मेरी बात समझ गए? ओके। Yes, sir. इसीलिए कभी हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि रेस्ट को क्यों अच्छा मानते हैं? अगर मुझे अपना कोई भी इनसिक्योर डेटा जो मेरा सिक्योर नहीं है, सॉरी मतलब जो बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, जिसकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो आप गेट में यूआरएल के थ्रू पास कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे देख ले कोई। ठीक है? लेकिन अगर डेटा सिक्योर है तो मुझे डेटा भेजना पड़ेगा बॉडी में, यूआरएल में नहीं। और बॉडी में भेजने के लिए मैं क्या करूंगा? पोस्ट। तो आपके पास रेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि गेट इस्तेमाल करो या पोस्ट? फ्लेक्सिबिलिटी है? हाँ यस सर। Yes, sir. लेकिन क्या सोप में कोई सुविधा आपको दे रखी है कि गेट भी इस्तेमाल करो, पोस्ट भी करो, डिलीट भी करो? आप मजबूर किसके लिए हो? पोस्ट। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो जो चीज फ्लेक्सिबल होती है यार उसी को तो लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए रेस्ट का सबसे बड़ा फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा रेस्ट का ये होता है कि चूंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इसमें एनवलप का टैग सबसे बड़ी मजबूरी, ये सारे टैग बने एक्सएमएल में, तो अंदर कभी जो डेटा है ये डेटा कभी एक्सएमएल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपकी मजबूरी है, जब ये बनी थी और आज तक सिर्फ एक्सएमएल को ही सपोर्ट कर रही है और कर पाएगी, कोई तरीका ही नहीं। लेकिन रेस्ट में क्या है, चूंकि ये एनवलप पे डिपेंड नहीं करती है, तो बॉडी में डेटा डालना है, चाहे पूरा एक्सएमएल डाल दो, पूरा जेसन डाल दो, और जेसन होती है लाइट वेट। तो जेसन की वजह से सोप सर्विस क्या होती है? थोड़ी फास्ट। समझ में आया? Yes. आज का सेशन मुझे खुद समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ रहा है, सिर्फ ये है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। उस दिन थोड़े कंफ्यूज हुए, आज थोड़ा क्लियर हो रहा है। इस सेशन को एक बार और देखोगे तो और क्लियरिटी आएगी। अब थोड़ा सा प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। प्रोडक्टिव मतलब समझ बहुत लिया, अब देखते हैं कि टेस्टिंग होती कैसे। ठीक है? तो टेस्टिंग में देखो, सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दोनों पैरेलली बताते हैं और मजा आएगा। ऐसा करते ही नहीं है कि पहले सोप को पकड़े रेस्ट को। तो सबसे पहला एग्जांपल एड स्टूडेंट में देखो क्या करते हैं कि एड स्टूडेंट का अगर हम एग्जांपल लें, तो आपका यहाँ पे एड स्टूडेंट है, अगर इसकी मैनुअल टेस्टिंग करें तो आपको क्लिक करना एक्सएमएल पे, और यहाँ पे इसमें 3 डेटा डाले।
3 डेटा डालने के बाद मैंने यहाँ पे इस बटन पे, रन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा आ गया। तो टेस्ट केस क्या क्या बनते हैं? टेस्ट केस अगर आपको दे रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट केस बनना क्या बनेंगे कि जब भी कोई रिक्वेस्ट में डेटा डाले तो उसका डेटा ऐसा होना चाहिए। सैंपल में क्या होना चाहिए? बॉडी के अंदर नेम होगा, एज होगा, सब्जेक्ट होगा। ऐसा आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो आपको इंफॉर्मेशन भले मिलेगी जिससे आप खुद इमेजिन करोगे कि उसके अंदर ये 3 टैग होंगे। होना तो चाहिए, क्या चाहिए कि ऐसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये देखो, ऐसे सैंपल रिक्वेस्ट देनी चाहिए और देते भी हैं। लेकिन मैंने आपसे बोला ना, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, वरना ये इससे क्या पता चलेगा आपको? ये आपकी रिक्वेस्ट है और जब इसका आंसर आएगा रिस्पॉन्स में तो डेटा कैसे मिलेगा? कोई रिजल्ट टैग आएगा इसके अंदर और कोई ऐसे आईडी बन के। क्लियर है? Yes. सबको क्लियर है? कोई ऐसा जो क्लियर ना हो? लिखिता, लिखिता आपको क्लियर है? Yes, sir. अमित को तो क्लियर है, मैं जानता हूँ। इंद्रजीत, राहुल, श्रृंखला, आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम समझ में आए, हिंदी में कहीं समझ में ना आए, यू कैन इंटरप्ट मी एंड आस्क मी टू रिपीट मी इन बोथ द लैंग्वेज। ओके, कहीं पे भी कोई लैंग्वेज की दिक्कत हो, यू कैन टेल मी। इज इट ओके? Yes. चलिए, अब देखो ये काम मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे टेस्टिंग ऐसे ही करते हैं कि आपका सबसे पहला का टेस्ट केस ये बना कि आपके इनपुट में 3 फील्ड होनी चाहिए। अगर वो बोल रहा है स्टूडेंट का ऑपरेशन है तो इनपुट में 3 फील्ड होनी चाहिए। अगर आपके डेवलपर ने गलती से एक नहीं डाली है तो आपका टेस्ट केस क्या हो गया? फेल। तो पहला टेस्ट केस क्या बना? कितनी भी रिक्वायर्ड इनपुट में कौन कौन सा बॉडी में डेटा जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? नेम फील्ड होनी चाहिए, एज, सब्जेक्ट। अगर आपको नहीं दिख रही है, आपको जैसी रिक्वेस्ट उसने दी डेवलपर ने, आप अपनी सैंपल रिक्वेस्ट जो आपको क्लाइंट ने दी उससे मैच करोगे। आप कहोगे इसमें तो 2 फील्ड आ रही है और क्लाइंट कह रहा है मेरे सैंपल में कि रिक्वेस्ट में कितने डेटा होने चाहिए? 3। तो ये टेस्ट केस क्या हो गया? फेल हो। समझ गए? यस सर। और क्या आज के टेस्ट केस बन सकते हैं कि इनपुट में 3 फील्ड जाए तो जब इसका रेस्पॉन्स आए तो उसमें कितनी फील्ड आनी चाहिए। जैसे मेरे वाले केस में उसने बताया कि आपकी फील्ड आनी चाहिए एक रिजल्ट जिसके अंदर मैसेज लिख के आएगा कि भाई डेटा सक्सेसफुल, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। तो इसका सैंपल देगा आपको, अपने मन से आपको नहीं करना है। ऐसा देखो सैंपल दिया जिसमें लिखा है कि आपके जो स्टूडेंट का रेस्पॉन्स, बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स बनेगा, ऐसे रिस्पॉन्स के अंदर रिटर्न एक फील्ड होगी, रिटर्न टैग के अंदर रिजल्ट टैग होगा, रिजल्ट के अंदर स्टूडेंट और इसके अंदर ये आईडी बन के आएगी यहाँ। ठीक है, तो ये आपको देगा ऐसे। आप यहाँ टेस्ट कर लोगे, हाँ भाई इसके अंदर स्टूडेंट नाम का टैग आ रहा है, आईडी आ रहा है। अगर आईडी बिना इसके आ रहा है तो भी आपका टेस्ट केस फेल है। सपोज मैंने क्या बोला कि अगर ये डेटा ऐसे आ गया, आपको ऐसे डेटा आ गया, तो डेटा तो आ रहा है, मान लो लॉजिकली आप देखा जाए तो आपका लॉजिकली का टेक्निकली तो आंसर सही आ गया। क्यों? यहाँ पे आपने डाला आईडी बन के आ गई कि नहीं आ गई? यस। लेकिन आपके क्लाइंट ने बोला था कि उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट होना चाहिए, उसके अंदर एज ए चाइल्ड आईडी होना चाहिए, नहीं आ रहा, तो ये भी आपका टेस्ट केस फेल है। ये मत सोचना आईडी बन गई तो आप खुश हो गए। आपका ये स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है हो सकता है कोई सोपीआई से इसकी टेस्टिंग ना करे। वो किससे टेस्टिंग करे? डायरेक्ट कोडिंग से। तो कोडिंग में इसको क्या टैग ढूंढेगा? कोडिंग में क्या टैग ढूंढेगा बताओ? आईडी टैग ढूंढने के लिए, आईडी टैग ढूंढने के लिए अगर मैं ये वाला रखूं तो इसका एक्स पाथ क्या बनेगा बताओ कोई? इस आईडी तक पहुंचने के लिए क्या जाना पड़ेगा? रिटर्न का चाइल्ड कौन है? आईडी रिटर्न का चाइल्ड कौन है? रिजल्ट। रिटर्न जो टैग है इसका चाइल्ड आईडी है कि नहीं है? यस। लेकिन एक्चुअल में जो सैंपल रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखना, उसमें क्या है? रिटर्न का चाइल्ड है स्टूडेंट और स्टूडेंट का चाइल्ड कौन है? आईडी। तो स्ट्रक्चर खराब बिगड़ा तो जो भी सर्विस को यूज कर रहा है उसको गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। समझ में आया कि स्ट्रक्चर फॉलो करना मस्ट है? समझ गए? Yes. तो ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। ये मत सोचना हम क्या सोचते हैं 3 डेटा डाला यहाँ पे आईडी, नहीं, ये आईडी आ कैसे रही है, किस स्ट्रक्चर में, एक्सएमएल का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये आपसे बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऐसे आना चाहिए तो ऐसे आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी। यस सर। तो ऐसे और भी टेस्ट केस आपके ऐसे, इसके अलावा अब थोड़ी देर के लिए इसको टेस्ट केस बनाने का तरीका लोग कहते हैं कंफ्यूजन, कुछ नहीं। आप ये मान के चलो, ये समझो ये रिक्वेस्ट एक यूआई है और जिसमें फील्ड रखे हैं, इनको आप कोई इनपुट फील्ड मान लो। तो इनपुट फील्ड को देख के जो आप टेस्ट डेटा बना सकते हो बना लो। ये फील्ड मैंडेटरी है कि नहीं है,
ये फील्ड मैंडेटरी है कि नहीं है, ये फील्ड मैंडेटरी है कि नहीं। मैंडेटरी का मतलब इसके अंदर डेटा देना जरूरी है कि नहीं। तो सारा इनको 3 टेक्स्ट फील्ड मान लो, सारे टेस्ट केस आपके बन जाएंगे। ऐसे ही इसको भी ये मान लो, इसको मान लो, यहाँ पे क्या कि आउटपुट में आपका जितने भी टैग बन के आ रहे हैं इनको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, टेक्स्ट फील्ड। तो आप बताओगे कि जब मैंने रिक्वेस्ट डाली तो ये रिक्वेस्ट, इस फील्ड का डेटा आना मैंडेटरी है, इस फील्ड का डेटा आना मैंडेटरी है, इस फील्ड का डेटा आना मैंडेटरी है, और हो सकता है कुछ मैंडेटरी ना हो। तो जैसा जो होता है, मेरी बात समझेगा, जैसा जो होता है स्ट्रक्चर आपके डॉक्यूमेंट में, हमें उसको वैसे ही टेस्ट करना है। उसमें स्ट्रक्चर में अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं यार इसको तो ऐसे कर दे, क्योंकि डेवलप उसको कैसे किया गया है, वैसे ही किया गया। समझ में आया? सर एक एक डाउट था। जैसे ना मतलब पहले जैसे इसमें फील्ड्स में ना पहले कुछ मैंडेटरी वैल्यूज थी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 फील्ड्स हैं, तो हाँ जी, उन्होंने 3 को मैंडेटरी किया और 2 को नॉन मैंडेटरी किया था। बिल्कुल। फिर इसके बाद मतलब ऐसा कुछ आया कि रिक्वायरमेंट आई कि नहीं भाई वो एक फील्ड है उसको भी मैंडेटरी कर दो, हाँ मतलब वो जी, भी मैंडेटरी है, उसको भी बिल्कुल। मैंडेटरी करके चलो। तो वो बाद में आई रिक्वायरमेंट सर, मतलब जैसे अब बजाइल में होता है तो वो भी बाद में आया कि नहीं भाई उसको भी मैंडेटरी कर दो। तो सर ऐसे जैसे बीच में अगर कुछ आता है, मतलब इसमें अगर ये किसी को तो किसी फील्ड को उन्होंने, तो मैंने जब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर, तो वो पहले बोलने लगे कि पहले मतलब वो टोकन की कोई फील्ड थी सर, तो उन्होंने अच्छा, पहले बोला कि वो जो टोकन है हमने कोड ऐसा लिखा है कि वो टोकन अपने आप मतलब टोकन सर जनरली डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक नहीं होते हैं, मतलब हाँ वो बिल्कुल चेंज सही। होते हैं। तो हाँ जी, उन्होंने पहले पहले वो मतलब डेवलपर ने बोला कि हमने ऐसा कुछ कोड करा है कि वो पीछे से चल रहा है और वो, हाँ वो एग्जीक्यूट भी हो रहा था सर। वो उसमें सर मेन पर्पस क्या था, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, कि वो उससे फाइल डाउनलोड होती थी। तो उन्होंने पहले बोला कि भाई और टोकन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, हमने कोड ऐसा लिख दिया है कि आपको आप जैसे एग्जीक्यूट करोगे आपको मिल जाएगा। तो अब वो मतलब अब क्या आया रिक्वायरमेंट, अब वो बोल रहे नहीं टोकन तो मैंडेटरी है, मतलब वो क्लाइंट से आ गया कि नहीं टोकन मैंडेटरी। तो सर ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मतलब कोई फील्ड को मैंडेटरी और अनमैंडेटरी कराना, मतलब हाउ डू वी एनालाइज दिस? हाँ, उसको एनालाइज ऐसे करो कि मैंने चूंकि वेब सर्विस डेवलप किए अपने उससे, अपने खुद विजार्ड से। अदरवाइज मैंडेटरी का मतलब, अगर यहाँ पे 3 फील्ड है, नेम, एज, सब्जेक्ट, मान के चलो अगर तीनों मैंडेटरी है, मतलब इसके बीच में आप इसे ऐसे, इसका मतलब इस फील्ड का होना जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई फील्ड मैंडेटरी नहीं है, सपोज ये मैंडेटरी नहीं है, तो अगर मैं अपने स्ट्रक्चर से इसको हटा दूं, ध्यान से देखना, सैंपल रिक्वेस्ट क्या कह रहा है कि आपके में 3 फील्ड होनी चाहिए, और अगर 3 में कोई मैंडेटरी नहीं है, तो अगर मैंने अपने स्ट्रक्चर से वो टैग हटा दिया तो मेरी कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। समझ गए? जी सर, नहीं मतलब ब्लैंक भी कर सकते हैं सर, मतलब हटाइए मत आप ब्लैंक। टैग में दोनों काम कर सकते हैं। पहली बात तो ऑप्शनल का मतलब इस टैग का होना हाँ ही हाँ। जरूरी नहीं है। दूसरा, ओके अगर ओके। है और इसको ब्लैंक डाल दिया तो भी हम्म। कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो एक आप खुद समझो, जब वो इसको चेक ही नहीं कर रहा है कि इसमें है कि नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने इसको ब्लैंक दिया या वो दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट सर। वो चेक ही नहीं, जब ये मैंडेटरी नहीं तो चेक ही नहीं कर रहा है कि आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको अगर वो आ रही है नहीं आ रही, उसने से मैंडेटरी माना ही नहीं है, तो अगर आपने भेजा है तो सही, नहीं भेजा है तो सही, वो मैंडेटरी चेक ही नहीं कर रहा है। ये डेटा जाएगा वहां जाएगा, और वहां जाके खुद एक वैलिडेशन लगा होगा कि अगर इसके अंदर वो डेटा है, इसको क्या मानेगा, डेटा ब्लैंक। डेटा को क्या मानेगा, ब्लैंक। और डेटा ब्लैंक का मतलब क्या है, या तो टैग मत डालो या टैग के बीच में वैल्यू मत डालो। समझ गए? राइट सर। तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी। तो मैंडेटरी क्या, मेरे में मैंने विजार्ड से बनाया इसलिए आपको दिख रहा है ये पूरा ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो मेरे में एरर क्यों आती है, क्योंकि मेरे में आपको दिख रहा है ये तीनों ऑप्शनल है, लेकिन एक्चुअली मेरे में तीनों क्या है, मैंडेटरी। क्योंकि मैंने अपने डेटाबेस से 3 फील्ड बनाई है, नेम, एज, सब्जेक्ट। तो मुझे जब तीनों डेटा मिलेगा तभी मैं क्या बना पाऊंगा, डेटाबेस में एंट्री। समझ में आया? हाँ, तो तो आपका मतलब मैंडेटरी का मतलब क्या है, अगर मैंडेटरी नहीं होगा तो जो फील्ड मैंडेटरी नहीं है उसको आप चाहो तो यहाँ से उड़ा दो, एज को हटाना उड़ा दो, अगर ये मैंडेटरी नहीं है। तो आपके स्ट्रक्चर में 2 ही फील्ड जा रही, नेम और सब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट जाएगी, सब कुछ काम होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
इसको भी बोलेंगे कि मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपने एज बना दी और उसके बीच में डेटा नहीं डाला, इसका मतलब भी एज मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर आपने यहाँ पे डेटा नहीं डाला, ध्यान से देखना, आपने यहाँ ये आपकी मैंडेटरी है और आपने डेटा नहीं डाला, तो यहाँ पे आपके राइट साइड में एरर आनी चाहिए। एरर का मैसेज कुछ भी हो सकता है। यूआई में आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे नेम फील्ड होती, यूजर नेम फील्ड होती, उसमें डेटा नहीं डालते हैं और आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो क्या मैसेज आता है? यूजर नेम इज कंपल्सरी। तो आपको रेस्पॉन्स में भी ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा भी होगा। अगर ये मैंडेटरी है कि भैया इसके बिना तो आप यहाँ भेज सकते ही नहीं है, तो रेस्पॉन्स में ऐसा आना चाहिए। समझ गए मेरी बात? अच्छा, ऐसा केस जनरली लोग क्यों नहीं बनाते हैं कि मैसेज नहीं देते हैं ये फील्ड मैंडेटरी है? क्योंकि आप वेब सर्विस को टेस्ट कर रहे हो किससे? सोप यूआई से। लेकिन किसी एंड यूजर को इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर क्या बनाया जाता है? उसका यूआई। क्या बनाया जाता है? इस पूरे डेटा को कैप्चर करने के लिए किसी ह्यूमन बीइंग से अगर कैप्चर कराना है तो क्या बनाओगे? यूआई। हाँ जी, कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो, तब तो समझ में आएगी। समझ में आएगी? अगर मैं आपसे सर कहूँ ये कि नहीं समझ आया, ह्यूमन बीइंग से कैप्चर कराना है मतलब? ह्यूमन बीइंग से मतलब कि आप इसमें एक्सएमएल कर रहे हो। अगर आपको ये किसी को, एक अननोन पर्सन है जिसको एक्सएमएल नहीं पता है, तो आप अपने घर में किसी से बोला जो घर में नेट का यूज करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, अमेजोन शॉपिंग करते हैं, उनको अगर आप कहोगे कि यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपको नेम डालना है, यहाँ प्रोडक्ट की आईडी डालनी है, यहाँ प्रोडक्ट का एड्रेस डालना है, जहाँ पे डिलीवर होना है, तो कुछ और लग रहा है? राइट। क्यों कहेंगे एक्सएमएल क्या होती है? उन्हें तो एक्सएमएल पता ही नहीं। लेकिन इसी की जगह अगर मैं देखो फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, उन्हें ये चीज समझ में आएगी जिसमें लिखा नेम एंटर करो, एज, सब्जेक्ट। यस सर। तो ये यूआई बनाई जाती है अगर सोप को, अगर सर्विस को कोई ह्यूमन बीइंग एड्रेस करता है, कोई इस्तेमाल करता है, तो ऐसे यूआई बनती है। देखो आपको पता भी चल रहा है, आपको कहीं से लग रहा है कि नेम के आगे जो नेम एंटर कर रहे हो एक्सएमएल होगा कि क्या होगा? आप तो उसमें कुछ भी डाल रहे हो। ये देखो मैंने डाला, पीछे से क्या बन रही है इसकी? एक्सएमएल। रॉ में जाके देखो क्या बनी इसकी? एक्सएमएल। एक्सएमएल बन रही है। ये देखो, जब आप यहाँ पे भेजोगे ना, देखो आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो बन गई, एक्सएमएल में आ गया। यस सर। तो यस। लेकिन आपसे एंटर करते वक्त आपको उसने दिखाया क्या? यूआई में बड़ी ऐसी फील्ड जो सबको, हर ईमेल, बच्चा जानता है कि अगर आपको इंटरनेट खोलोगे, अगर लॉगिन करना है तो उसे टेक्स्ट फील्ड दिखाई देती है। अगर मैं लॉगिन करते वक्त उसे ये दिखा दूं, ऐसी फील्ड दिखा दूं, ऐसा कुछ, या यूजर नेम लिख दूं, पासवर्ड, उसे अजीब सा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। तो ध्यान से समझिए, वेब सर्विस हम टेस्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बनता है नहीं बनता है आपके घर में पापा मम्मी, इनको क्या मतलब? उनको तो मतलब है यूजर नेम पासवर्ड डालो। तो पीछे से स्ट्रक्चर बनता है, ये बनाने का काम करता है कौन? जो आपका यूआई का डेवलपर होता है, वो पीछे से रिक्वेस्ट अपने आप पूरी बनाएगा, आपसे वो डेटा लेता है जो चाहिए, क्या? नेम, एज, सब्जेक्ट। इसीलिए आपको जो वेब सर्विस यूआई वाली होती है उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। समझ में आया? Yes. लेकिन अगर कोई कोड से जब भेजेगा, जब यूआई से ह्यूमन बीइंग से कैप्चर ना करके कोड के थ्रू टेस्ट करेगा, मतलब कोड से रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उसे रिक्वेस्ट ऐसे नहीं बनानी की यूआई की तरह, उसकी रिक्वेस्ट बनती है एक्चुअली ऐसे। रॉ मतलब पीछे से बन के क्या जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जो पीछे से डेटा पूरा बन के जा रहा है वो कैसे बन के जा रहा है? ऐसे। एक्सएमएल की बॉडी ऐसे बनाता है, यहाँ पे बनाता है, मेथड का इंफॉर्मेशन रखता है। ये देखो मैंने आपसे क्या बोला था, क्या क्या डेटा जाता है रिक्वेस्ट में? ये रिक्वेस्ट की बॉडी है, ये रिक्वेस्ट का मेथड है, ये रिक्वेस्ट का यूआरएल है, और ये जितना भी नीचे आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर। हाँ जी बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं इतने पार्ट को जो हाईलाइट है? Header. अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जरा पोस्ट वाले मेथड में जाओ, रिक्वेस्ट में जाओ, और इसके रॉ को देखना, ध्यान से देखना। आपको मैंने क्या बताया था कि रेस्ट में एक्सएमएल और जेसन दोनों सपोर्ट करता है कि नहीं करता? Yes. ध्यान से देखना, आपने यहाँ बॉडी एक्सएमएल में भेज रहे हो, कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन दिख रही जो बता रहा है कि ये डेटा एक्सएमएल है? कहीं कहीं ऐसी जगह पूरी रिक्वेस्ट में
मैंने आपको मेथड बताया, यूआरएल बताया, हेडर बताया, बॉडी। इस पूरी इंफॉर्मेशन में कहीं ऐसा लिखा है कि आपकी बॉडी का जो डेटा है वो XML है? कहीं लिखा दिख रहा है? आप ध्यान से ऊपर से तीसरी लाइन पढ़ना शुरू करो। एक फील्ड है जिसका नाम है कंटेंट टाइप, दिख रहा है? यस सर, एप्लीकेशन क्लास XML। वेरी गुड। ये डेटा आपकी बॉडी में क्या डेटा जा रहा है, किस टाइप का डेटा, इसका इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है। लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? हेडर में। हेडर में ये बताता है कि बॉडी में क्या जा रहा है, कितनी साइज का जा रहा है। ये पूरा जो डेटा, इसका साइज पता है कितना है? कितना साइज है, कोई बता सकता है? गेस करके। यहाँ दिख रही है इंफॉर्मेशन 81. 81, क्योंकि बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है हेडर के पास। किस तरह का डेटा, कितनी लेंथ का डेटा, और जहां ये डेटा जा रहा है उसका एड्रेस क्या है। क्या है उस फील्ड का नाम? होता है होस्ट। ये बता रहा है इस जगह पे डेटा जा रहा है। जो आपने पूछा ना कि कहाँ पे डेटा जा रहा है, होस्ट हेडर में होता है। यूआरएल पूरा ये बन रहा है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है, ध्यान रखना। कनेक्शन का मतलब है कि जब आपका ये जा रहा है, कीप अलाइव मतलब सबको पता है, कीप अलाइव मतलब जब कनेक्शन बना रहे हो तो जिंदा रखो, मतलब रिक्वेस्ट जाएगी। समझ में आया? ओके सर। तो ये Yes. सारा डेटा ध्यान से देखना, ये पूरा डेटा होती है बॉडी, ये पूरा डेटा होता है हेडर, और इसका ये वाला पार्ट होता है यूआरएल, और इसके पहले पार्ट होता है बॉडी। इन चार इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे, इसके बिना दुनिया में कोई डेटा जा ही नहीं सकता। एक ही कंडीशन है कि बॉडी नहीं देनी पड़े। अगर बॉडी में डेटा नहीं डाला, और बॉडी में डेटा नहीं डाला, तो मेथड हमेशा क्या होगा? Get. सारी चीजें कनेक्टेड समझ में आ रही हैं? तो Yes. जब हम रेस्ट स्टोर को यूज करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस यूआई का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं मैं, इस यूआई का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा और टेस्टिंग करूंगा। तो आपको एक काम करता हूं, सबसे बढ़िया आपको वो चीज भी आज दिखाता हूं, क्योंकि आपके लिए जब कंफ्यूजन है, जो अब अगर इतना क्लियर हुआ है, तो यही समय है आपका वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूं कि मैं आपको क्यों हेडर बता रहा हूं, क्यों बॉडी बता रहा हूं। जैसे ही रेस्ट स्टोर में आते हैं, मेरा एक्लिप्स किसी को दिखाई दे रहा है? अब मत बताना, अब तो मैंने खोल दिया। अब मैं आपको इक्लिप्स के अंदर दिखाता हूं कि बिना यूआई के टेस्टिंग, यानी सोप यूआई का टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पोस्टमैन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो कोड से मैं कैसे टेस्ट करता हूं। आप मुझे बताओ, अगर मुझे कोड से टेस्ट करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो फिर भी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? चारों साई बताओ। यूआरएल, हेडर, मेथड, बॉडी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? Yes, sir. अगर मैं किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करूं या करूं, देनी तो पड़ेगी। अब टूल का इस्तेमाल करने में तो आपको थोड़ा सा इसलिए लगता है कि भाई इस टूल में ऐसा होता है, पोस्टमैन में दूसरे तरीके से होता है। अब कोडिंग में दिखाता हूं कैसा होता है। आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, बनी बनाई दिखा रहा हूं। जब आपकी बारी आगे के सेशंस में आएगी तब आपको बताऊंगा, लेकिन एक झलक देखो, है ना? झलक देख के आपको पता चलेगा। ये मैं दिखा रहा हूं पोस्ट, ध्यान से देखना। भैया खुल जाओ जल्दी। तो पोस्ट में मैं आपको बताऊं, एपीआई पढ़ाने में बहुत चैलेंज है। क्यों? मैंने आपसे क्या बोला शुरू से, पहले सेशन से कह रहा हूं कि आप लोग के लिए तो पढ़ना आसान है, लेकिन मार्केट में इतनी इसकी नॉलेज कम है कि हम समझा ही नहीं पाते। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले रेस्ट एश्योर्ड में, अभी आप ये मत सोचना कि आपको प्रॉपर, ये मैं बता रहा हूँ ताकि सबके लिए आसान हो जाए। ये सबके लिए है, ये सब मेरे किसी नहीं है, अमित ने भी नहीं पढ़ा हुआ है। रही सही कह रहा हूं मैं? अमित की आवाज नहीं आती है, अमित चैट पे ही बोलते हैं। अमित यस सर। हाँ जी, अच्छा अमित ने पढ़ा है रेस्ट में थोड़ा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है रेस्ट एश्योर्ड में, क्या होता है, सारा काम करने के लिए जब भी जावा होती है, जावा में क्या होती है, किसी को काम करने के लिए क्या होती है, फंक्शन। और फंक्शन किस में लिखे जाते हैं? मैं उम्मीद करूंगा सब बोलेंगे। श्रृंखला, राहुल, लिखिता, इंद्रजीत, अमित। आपके जावा में किसी काम को करने के लिए होते हैं फंक्शंस, और फंक्शन किसके अंदर लिखे जाते हैं? क्लास के अंदर। किसको नहीं क्लियर है? लिखिता, श्रृंखला, आप लोग को क्लियर है? Yes. तो देखो मेरे पास अगर मुझे कोई, ध्यान से देखना, अगर कोई रिक्वेस्ट के एपीआई की कोई रिक्वेस्ट बनानी है, कोई एपीआई की रिक्वेस्ट बनानी है, तो क्लास का नाम है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। क्या नाम है क्लास का? Request specification. और इस क्लास को रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन मतलब मुझे रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करना है,
बताना है कि रिक्वेस्ट में क्या क्या कैसे ऐड करना है। लेकिन ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ये आपको बनाने के लिए जो प्रिपरेशन करके बना बनाया ऑब्जेक्ट देता है, यहाँ भाई ये लो रिक्वेस्ट ले लो, ये रिक्वेस्ट का मैंने बना दिया, इस रिक्वेस्ट में जो जो डालना है डाल दो। वो देता है क्या, रेस्ट एश्योर्ड का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गिवन। जैसे ही रेस्ट एश्योर्ड का गिवन मेथड बनाता है तो वो आपको क्या बना के देता है, कुछ ऐसे समझो, आपको ये समझो एक डब्बा बना के देता है। ये रिक्वेस्ट का क्या बना के देगा, समझो डब्बा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बना के देगा, डिब्बा। इस डिब्बे में क्या क्या डालना है, जो आपकी श्रद्धा हो, ये 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 गेटिंग माय पॉइंट। Yes. तो जब आप रेस्ट एश्योर्ड का गिवन मेथड कॉल करते हो तो समझ लो आपको रिक्वेस्ट मतलब इसने एक खाली डिब्बा, एक रिक्वेस्ट बना के दे दी कि भाई ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, जो जो सेट करना है कर दो। अब सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं। आपके पोस्ट में अगर मैं एग्जांपल लूं ये रेस्ट का, सबसे पहले बताना पोस्ट में क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, पहला चीज यूआरएल। क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, हाँ जी, URL। और उसके साथ यूआरएल के क्या साथ क्या होता है, यूआरएल के साथ क्या होता है, मेथड। सबसे पहले भैया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यूआरएल और मेथड। तो देखो यहाँ पे अगर आपको यूआरएल जो चूज करना होता है उसके हिसाब से रिक्वेस्ट के अंदर मेथड बने हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं, ये देखो, रिक्वेस्ट करोगे डॉट, रिक्वेस्ट डॉट, आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको गेट वाली रिक्वेस्ट बनानी है जो गेट को इस्तेमाल करती हो, तो मेथड का नाम क्या है, गेट। गेट नाम से दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है गेट नाम से। Yes. Yes, sir। अगर गेट टाइप की रिक्वेस्ट बनानी है एपीआई टेस्ट करने के लिए तो कर दो गेट। अगर पोस्ट बनानी है तो मेथड का नाम है पोस्ट। दिख रहा है, Yes, sir। तो आपको मेथड सिलेक्ट करने के लिए अगर आपको गेट टाइप की रिक्वेस्ट चाहिए, पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी है, पुट की बनानी है, कोई मेहनत नहीं करनी है। जिस टाइप की रिक्वेस्ट, देखो हर टाइप की रिक्वेस्ट के लिए मेथड है, पुट के लिए पुट है, डिलीट के लिए डिलीट है। इसका मतलब पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल कि अगर आपको पोस्ट बेस्ड एपीआई यूज करनी है तो रिक्वेस्ट का कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, Post. वेरी गुड। यानी पहला काम खत्म, आपकी रिक्वायरमेंट खत्म कि अगर पोस्ट बेस्ड वाली एपीआई है तो पोस्ट मेथड इस्तेमाल करो। अब आती है बात अगली कि मेथड पता लग गया, ये यूआरएल कहाँ डालते हैं, यूआरएल डालते हैं इसी पोस्ट मेथड के पैरामीटर में, यानी ब्रैकेट लगा के इसके अंदर जो डबल कोट्स में पैरा जाता है, ये क्या होता है, यूआरएल। क्या होता है ये, URL. यानी कि रेस्ट एश्योर्ड में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड चूज कर लो और उस जो भी मेथड है उसके हिसाब से फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन के अंदर यूआरएल डाल दो। तो दो काम तो सेट हो गए। अगर गेट है तो क्या होगा, गेट मेथड यूआरएल, पोस्ट है तो पोस्ट मेथड यूआरएल, अगर पुट है तो पुट बेट यूआरएल। दो चीजें क्लियर हो गई, Yes. हाँ sir. जी क्लियर हो गई, हाँ ना, वेरी गुड, कुछ तो बोलो। Yes, sir। Yes, अब sir. अब बताओ, मेथड के लिए, पोस्ट मेथड के लिए उसने मेथड बना के दिया, यूआरएल उसमें डाल दिया। अब क्या बचा देना है इसमें, बॉडी। क्या देनी है, Body। Body. अब रिक्वेस्ट में बॉडी दे कैसे, तो आपने रिक्वेस्ट में मेथड चूज करके मेथड कर लिया, यूआरएल बॉडी के लिए सीधा मेथड है। इस मेथड में इस रिक्वेस्ट में बॉडी बनानी है तो लिखो BODY और इस बॉडी के अंदर जो भी आपका XML जेसन का डेटा है डबल कोट्स करके अंदर डाल दो। मैंने आपसे क्यों बोला कि ये रिक्वेस्ट का डब्बा है, क्यों एग्जांपल लिया, बार बार फिर से देखना, क्योंकि मैंने वो खाली डब्बा है, इस डब्बे को मैंने नाम दिया रिक्वेस्ट, REQUST रिक्वेस्ट। मेथड अगर पोस्ट चाहिए तो रिक्वेस्ट डॉट का मतलब, डॉट का मतलब सब कुछ अंदर, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड मतलब मैंने पोस्ट का इस्तेमाल किया, पोस्ट के अंदर यूआरएल डाल दिया, दो काम ये हो गए। अब मुझे डालना है रिक्वेस्ट में बॉडी, तो इसी रिक्वेस्ट के अंदर डब्बे में क्या डालनी है, बॉडी। तो हर चीज किससे मिल रही है, रिक्वेस्ट डॉट, किससे मिली है, रिक्वेस्ट डॉट। तो देखो यहाँ पे देखो, अब मैंने एक कोड पहले से किया है तो आपको पहले से दिखा रहा हूं मैंने कहाँ कहाँ क्या काम किया। देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके पूरा एक्सएमएल का डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Yes, sir। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा डालने का तरीका, बॉडी फंक्शन कॉल करो। इंटरव्यू में यही पूछेगा, रेस्ट एश्योर्ड में बॉडी में डेटा कैसे डालते हैं, कहने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डेटा डाल दो। रिक्वेस्ट के यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या, यूआरएल हो गया। अब आती है बात एक जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में परेशान कराते हैं। कैसे, वो कहते हैं
कि आपने यहाँ पे डाल दिया है क्या, मेथड, पोस्ट मेथड ले लिया, यूआरएल ले लिया, बॉडी में डेटा यहाँ डाल दिया। क्या इसमें कोई और इंपॉर्टेंट चीज है? यस, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि रेस्ट वाली एपीआई एक्सएमएल को भी सपोर्ट करती है और जेसन को भी। तो रिक्वेस्ट बनाते वक्त इस डब्बे में, इस रिक्वेस्ट के डब्बे में जो डेटा यानी बॉडी जा रही है उसमें किस तरह का डेटा इसको भी देना पड़ता है, और उसके लिए जो इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, हेडर। क्या नाम इस्तेमाल होता है? हेडर। तो आपके रिक्वेस्ट में हेडर को कैसे बताएं, तो इसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है रिक्वेस्ट डॉट हेडर, और यहाँ पे लिखते हो हेडर की फील्ड का नाम और यहाँ पे उसकी वैल्यू। समझ में आया? यस सर। Yes. दुनिया की कोई भी एपीआई आप कॉल कर सकते हो, जो आज मैंने अगर बताया आपको, बहुत आसान। जो मेथड चाहिए उसके हिसाब से इस रिक्वेस्ट का डॉट मेथड कॉल कर लो, अंदर यूआरएल डाल दो, इसके बाद अगर बॉडी में डालना है तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके डबल कोट्स में बॉडी डाल दो, रिक्वेस्ट डॉट हेडर करके जो हेडर। अब यहाँ पे ये हेडर देना मस्ट होता है। क्यों? कैसा डेटा जाएगा ये देना मस्ट होता है। इसको प्रूफ करते हैं यहां से। कैसे? आपके रेस्ट वाले में, आपके रेस्ट एपीआई में मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे एक्सएमएल को करके गलती से गलत दे रहा हूं, जानकर जेसन कर दिया, ध्यान से देखना कि आपको रिजल्ट मिल रहा है उसी डेटा के साथ। मिला कोई रिजल्ट की एक एरर आई? Unsupported media type. वेरी गुड। क्योंकि ये डेटा अगर आपने गलत दिया मीडिया टाइप, तो ये आपको यूआई सोपीआई आपके लिए मदद कर रहा है, आपको यूआई के फॉर्म में दिखा देगा कि मीडिया टाइप, लेकिन एक्चुअली मीडिया टाइप क्या होता है, कंटेंट टाइप। मीडिया क्या होता है, कंटेंट टाइप। रॉ में जाके देख लो क्या बन रहा है, कंटेंट टाइप जेसन, और ये जेसन को रेस्पॉन्स वाली जगह पे वैलिडेट कर रहा है। अरे भाई, रेस्पॉन्स में वो पहले रेस्पॉन्स, मतलब जब रिक्वेस्ट जा रही तो चेक कर रहा है कि बोल रहा है कंटेंट भेजूंगा जेसन, और भेज क्या रहा है, क्या भेज रहा है, तो वो यहीं पे इसको फाड़ के रख देता है रिक्वेस्ट को। तो मैंने कहा ना, रिक्वेस्ट बनाते वक्त प्रॉपर, अगर मैं यहाँ जाऊं और इस मीडिया टाइप को कर दूं एक्सएमएल, तो अपने हाथ जब रिक्वेस्ट का डेटा बनेगा उसमें हेडर में कंटेंट टाइप क्या जाएगा, एक्सएमएल। देखो इसको क्लिक करता हूं, अपने हाथ रिक्वेस्ट चल गई। चल गई कि नहीं चल गई? मैं सही बताऊं आपको, मेरे से कोई कहता है एपीआई टेस्ट करो, ऑफिस में भी कहते थे पहले, तो वो कहते थे मैं पोस्टमैन खोला, मैं कहता हूँ 5 मिनट दो, मैं ये कोड लिख देता हूँ। पता है जितनी देर में आप इतना बवाल करते हो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट यूजिंग दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, लेकिन जितनी देर में आप परेशान होते हो ना, मैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मेथड कॉल करता हूँ, यूआरएल डालता हूँ, डेटा डालता हूँ, हेडर डालता हूँ, और ये देखो यहीं पे राइट क्लिक करके इस कोड को चला दूंगा। इससे ज्यादा कोड नहीं चाहिए करने के लिए। इससे आसान अगर कुछ हो तो बता दो। ये मत कहना कि मुझे जावा थोड़ी आती है, इसमें जावा पढ़ने की भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। रन नहीं चला भाई, रन कर दिया तो मैं आपको दिखाता, ये देखो मैंने यहाँ पे बॉडी प्रिंट करा रखी है, रन एस टेस्टनजी टेस्ट। चला दो भाई, चला दो, चला दो। हाँ जी, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे एसओपी में मैंने क्या पढ़ना कर रखा है, जो रिस्पॉन्स की बॉडी आ रही है, ये रिस्पॉन्स। ये जब रिक्वेस्ट करते हैं तो अपने हाथ रिक्वेस्ट के लेफ्ट साइड में क्या देता है, अपने हाथ रिस्पॉन्स। आपको दिखाओ, मेरे कंसोल पे जाके देखना, आपको कुछ डेटा दिख रहा है जो आपने कहीं और भी देखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये डेटा कहाँ दिख रहा था आपको, सर वो सोप गेम। तो Response. यूआई में क्या यही डेटा आपको रेस्पॉन्स में नहीं दिख रहा है? जरा मैच करके देख लो, ये वाला डेटा सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो कितना आसान है। और आपके सामने देखो, बल्कि मुझे लग रहा है तो मैं रेस्ट एश्योर्ड ही पढ़ाना शुरू कर दे रहा हूँ। अब आप मेरी एक मदद करना, ध्यान से मदद करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। मैं आपके सामने खुद ही एक काम करता हूँ, खुद गेट का बना हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए गेट की एक एपीआई बनाता हूँ सामने। ध्यान से देखना, कोई बात नहीं, एक चीज आगे हो या पीछे हो, समझ में आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैं आपके लिए खुद ही गेट बेस्ड एपीआई बनाता हूँ, गेट बेस्ड एपीआई को कॉल करता हूँ, गेट मेथड बेस्ड एपीआई। खुद बनी है, लेकिन मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ कि आपको ये लगे यार प्रदीप ये तो बहुत आसान चीज है, और इसको मैं मेन मेथड से बना रहा हूँ, टेस्टनजी से भी नहीं बना रहा हूँ, ताकि आपको कोर्स है। टेस्टनजी तो चलाने का तरीका होता है। ये किया मैंने। सबसे पहले रेस्ट एश्योर्ड जो आपकी क्लास होगी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें जार चाहिए होती है, लेकिन क्लास का नाम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लास का नाम क्या है, रेस्ट एश्योर्ड। क्या नाम है क्लास का,
रेस्ट तो रेस्ट एश्योर्ड नाम की क्लास होती है, आपको उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। जार मैं बता दूंगा, ये देखो यहाँ पे जब जार डालोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट करके रेस्ट एश्योर्ड नाम की एक क्लास है। सबसे पहले आपको अपनी कोडिंग में क्या करना है, रेस्ट एश्योर्ड क्लास का लेना है और डॉट करके इसका एक मेथड कॉल करना है जिसका क्या नाम है, गिवन। क्या कॉल करना है, गिवन। इस गिवन को कॉल करना, और इस गिवन का रिटर्न टाइप क्या होता है, कुछ बताओगे मुझे? यहाँ दिखता है सब, देखा जब आप सिलेनियम पढ़ते हो तो उसमें ये सब चीजें मैं बता देता हूँ। डॉट में गिवन लिख रहा हूँ, इस गिवन मेथड पे जा रहा हूँ, आप कोई मुझे बताएगा इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? ये वाला मेथड है गिवन, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, इसका रिटर्न टाइप बताओगे कोई क्या है? नहीं, देखो आपको ध्यान यही देना होता है। सिंटेक्स क्या होता है इक्लिप्स का, पहले लिखा होता है गिवन फंक्शन का नाम ब्रैकेट में, कोलन के बाद लिखा होता है रिटर्न टाइप। कोलन के बाद क्या लिखा है, कोलन के बाद कोलन के बाद हमेशा फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा होता है। अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो यहाँ लिखा होगा वॉइड, और उसके बाद लिखा है डैश, और डैश के बाद लिखा है रेस्ट एश्योर्ड। तो सिंटेक्स होता है इक्लिप्स का, जावा का नहीं। फंक्शन का नाम, कोलन के बाद उस मेथड का रिटर्न टाइप, और डैश के बाद वो फंक्शन किस क्लास में। तो हमारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है किसमें, रिटर्न टाइप या फंक्शन के पैरामीटर में। तो ब्रैकेट खाली है गिवन का, इसका मतलब पैरामीटर क्या है, 0, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो इसको जो स्टोर करके रिटर्न करने में रिटर्न करके रखेगा, इसमें क्लास का नाम है जिसका नाम है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। ये देखो दिख रहा है इसमें, ये वाली क्लास आईओ एश्योर्ड स्पेसिफिकेशन, इसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इसका नाम रख लो रिक्वेस्ट। हाँ जी, अब बताओ जिसको जावा नहीं आ रही वो भी बता दो, किसको नहीं समझ में आ रही सबसे पहले बताएंगे हमारी लिखिता, बताएंगे हमारी। Yes, sir, I'm able to understand. Okay, you are getting to understand that we have a class rest assured, and when you are going to call a method given of the rest assured, actually it is giving you the object of a request specification. You can treat it just like an object where you can set all your requirements in the request, like body, header, you can see content, everything you can set it here. Is it okay? Yes, sir. तो ये सब किसी भी तरह की एपीआई को टेस्ट करना है, ये लाइन कॉमन है क्या, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, जो ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड यू सेट इट। तो ये रिक्वेस्ट का बन गया। अब जो काम इसके बाद करना है ये सारा डिपेंड करता है किस तरह की एपीआई। तो मैंने आपको बताया था, आपको बताता भी हूँ, ध्यान से देखना। रिक्वेस्ट को यहाँ ऐसे रहने दो, मैं आपको, आप मुझे बताओगे आप में से, और ये आंसर मुझे देंगे जो सबसे ज्यादा क्वेरी करती है हमारी श्रृंखला। हाँ जी, रेडी हो आप? जी सर। जी सर। अरे घबराओ नहीं, मैं हूं ना, है ना। तो आप बताते जाना सिर्फ। सबसे पहले गेस्ट बेस्ड एपीआई का मैं आप इसमें यूआरएल कॉल करते हैं। सबसे पहला इसका एग्जांपल लेते हैं, इसी का, ठीक है। चलिए, मेथड का नाम मेथड गेट है, तो मेथड कौन सा है, यहाँ पे मेथड गेट यूज करना है एपीआई में। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्या लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्या लेंगे, जिस नाम का मेथड उसी, जो मेथड उसी नाम का क्या होगा, यहाँ पे मेथड लेंगे। वहां जो एचटीटीपी का मेथड है, यहाँ उसका क्या होगा, फंक्शन का नाम। गेट ले लिया, यस सर। और गेट में, नहीं आपकी आवाज से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फिर मुझे पता है आई डोंट, मतलब मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि आपने, यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी, यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम, स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। ये नहीं समझ में आ रहा है। रिक्वेस्ट के अंदर डॉट कर, आपने जावा पढ़ी हुई है कि नहीं पहले श्रृंखला? सर वही थोड़ा जावा का ही इशू है, मतलब इसलिए मैं बोल नहीं रही थी। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि जावा में, अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा, आपको एक दो वीडियो भी दूंगा। और यहाँ पे जावा में क्या होती है, ऐसे क्लासेस बनी होती है, ठीक है। और क्लासेस के अंदर होते हैं फंक्शन, और फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन कैसे बदलते हैं, किसी भी क्लास को डॉट करके अगर कोई ऐसा वर्ड दिखे, उसके बाद ये ब्रैकेट दिखे, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो रिक्वेस्ट के अंदर आप खुद बताओगे, अगर मैं डॉट करता हूं तो बहुत सारे फंक्शन दिखे होंगे। पहला वाला जो दिख रहा है, ये देखो, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट से स्पेसिफिकेशन के बाद कहीं ब्रैकेट लगा दिख रहा है, नहीं। तो मेथड कौन कौन से जिनके आगे ब्रैकेट लग रहा है, गिवन, दूसरा वाला गिवन, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर कुछ लिखा है लेकिन बिगन। विद ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं है, क्योंकि इसके ऑथेंटिकेशन के बाद कहीं पे भी राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं। जिसके आगे ब्रैकेट दिख रहा है राउंड वाला, वो होते हैं फंक्शन। तो आपके जावा में रेस्ट एश्योर्ड जो क्लास का नाम है, डॉट करके आपको जो फंक्शन कॉल करना है उसका नाम है गिवन।
और इक्लिप्स में आपको उसको लिखना नहीं पड़ता, डॉट गिवन किया ठीक है। इसके बाद जो गिवन का जो भी फंक्शन आप इस्तेमाल करते हो उसका जो रिटर्न टाइप होता है, ये फंक्शन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस कोलन के बाद लिखा होता है कि किस तरह की चीज रिटर्न कर रहा है, किस क्लास की चीज। जो क्लास की चीज यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, तो लेफ्ट साइड में उसी क्लास का नाम और इसके बगल में लिख देते हैं क्या, रिक्वेस्ट। कितना क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे टाइम लगेगा बट यू विल टेक टाइम। ओके, यस सर। अब ये रिक्वेस्ट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको डॉट करके आपको वो मेथड यहाँ पे चूज करना है जो मेथड आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इस्तेमाल गेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम चूज करना है वो भी क्या होगा, जी। और गेट करने के बाद आप चाहो तो ये देखो मैं गेट लिखूंगा भी नहीं, डॉट करता हूँ और केवल जी लिखता हूँ, आपको गेट का मेथड दिखेगा। आपको इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, गेट इस्तेमाल करना है, ये वाला। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कभी कुछ मत करना, मैं जो आपको बताऊंगा ऐसे गेट पहला वाला चूज कर लेना जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इसके अंदर बीच में डबल कोट्स डाल के इसमें डाल देना क्या, वो यूआरएल। तो यूआरएल आपको चाहिए, तो मेथड जो वहां पे जो मेथड है वो आपका मेथड डिसाइड करेगा और यूआरएल उसके अंदर पास होगा। ध्यान से देखना, ये किया मैंने कॉपी यूआरएल, इसे मैं ले गया यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके बाद ये गया लास्ट में हम ये आपका जो सिंटेक्स होता है जावा में सेमीकोलन लगा। रिक्वेस्ट के अंदर कौन से दो काम कर दिए सुकेश, मैंने सुकेश तो ही नहीं आज, कौन से दो काम कर दिए मैंने राहुल? एक तो ऑब्जेक्ट उसके रेफरेंस से हमने उसके फंक्शन कॉल कर दिया। हाँ, मैंने जिस नाम का मुझे एचटीएमएल मेथड था उस नाम का फंक्शन ले लिया, यानी मेथड का उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, उसको यूआरएल दे दिया, दो चीज रिक्वेस्ट को बता दिए। अब क्या बचा, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा नहीं, दो ही चीज देनी थी, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जब कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं करना। अब ये जब चलता है, जब ये मेथड चलता है तो पता है ये अपने हाथ एपीआई का इस मेथड के साथ, इस मेथड का काम ही है कि जाओ इस एपीआई को हिट करो और इसका रेस्पॉन्स ले आओ। लेकिन रेस्पॉन्स लाने के लिए इसको ले तो आएगा, लेकिन आप देखो कैसे, तो इक्वल टू करके लेफ्ट में क्या करते हैं, इसे कहीं कहीं स्टोर करते हैं। कहां पे स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जो स्टोर करते हैं उस क्लास का नाम है रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे और कुछ छोड़ो, ये देखो यहाँ पे लिखा है रेस्पॉन्स। आपको अगर देखना है तो यहाँ पे भी क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे लिखो RESPON, ये देखो इसमें पहला वाला रेसिस्टोर्ड रेस्पॉन्स लिखा है, और रेस्पॉन्स का इसका जो आगे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका नाम भी रखते हैं रेस्पॉन्स, RESPONSE रेस्पॉन्स। अब इसके अंदर पता है क्या मिलेगा, इस रेस्पॉन्स के अंदर क्या क्या आ गया है। अगर मैं इस रेस्पॉन्स को आपको बताऊं इसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर रेस्पॉन्स का जो है वो सब कुछ है। सब कुछ मतलब आपके रिक्वेस्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेथड, बॉडी, हेडर, सब कुछ होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। आपके रेस्पॉन्स में भी सेम चीजें होती है कि नहीं होती है? रॉ में जाके देखो, क्या रेस्पॉन्स में भी सेम चीज होती है ना, मेथड भी होता है, बॉडी भी होती है, हेडर भी होता है, सब कुछ होता है। यस यस। ये पूरा का पूरा सब कुछ रिटर्न करके ला रहा है आपके लिए, सब कुछ। इससे आसान क्या होगा कि 2 लाइन में आपने एपीआई हिट कर दिया। अब आता है आपको रिस्पॉन्स में चाहिए क्या, इसके अंदर सब कुछ है, आपको जो चाहिए निकाल लो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जो इंटरेस्ट की चीज होती है, क्या कि भाई रिस्पॉन्स अगर आया तो उसकी बॉडी में क्या आया है, बॉडी में आया होगा ना, सारी डिटेल आई होगी, तो डिटेल निकालो कैसे, रेस्पॉन्स डॉट, और इसमें मेथड का नाम होता है गेट रेस्पॉन्स, ऐसे करके गेट बॉडी, और डॉट करके यहाँ पे एक मेथड कॉल करते हैं एज स्ट्रिंग। ये मेथड कॉल कर लो तो ये आपको क्या करता है, जो बॉडी है उसके अंदर की, अब चाहे बॉडी एक्सएमएल में हो चाहे बॉडी किस में हो, जेसन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको बॉडी देगी और उस बॉडी को आपको क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगी। आप इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करके रख लो, स्ट्रिंग, और उसका नाम लिख दो रेस्पॉन्स एज स्ट्रिंग। मतलब रेस्पॉन्स को आप एक स्ट्रिंग की तरह कैसे रख रहे हो अपने पास, और एक एसओपी लगा दो, खत्म हो गई गेट बेस्ड एपीआई की वो। अब इसमें वैलिडेशन जो करने वो तो जावा कोडिंग इफ एल्स होगा, वो तो अलग बात है। ये अब इसको प्रिंट करा, ध्यान से देखना कितना लंबा प्रिंट होके आएगा, क्योंकि इसके अंदर आएगा सारा का सारा डेटा है। इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, लेकिन अगर मैं नई फाइल में दिखाऊंगा ना तो आप चौंक जाओगे। ये देखो रैप कर रहा हूँ, रैप, कितना डेटा दिख रहा है, ये देखो सारी आ रहा है, सारा डेटाबेस डेटा से। यस सर।
सारा डेटा आ रहा है, ये वही डेटा है जो आपको अपने दिखता है। चेक करने के लिए यहां से देख सकते हो स्टूडेंट पहला डेटा अंकु, इस डेटा को यहां से देख लो, चाहे अपने SOAP UI से देख लो, ये सेम डेटा है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा ऐसा आ रहा है ना, ये देखो, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, देखो छोटा छोटा, ये देखो ये थोड़ा स्क्रॉल में इतना सारा डेटा है, तो ऐड वाला है, आपको गेट वाला दिखाना है, गेट ऑल स्टूडियो। ये देखो स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है। और चाहो तो रॉ में देखो, रॉ में आसान इसलिए नहीं कि एक ही लाइन में, तो ये देखो जरा तेजी से दिख रहा है भाई लोगों। यस सर। Yes, sir. तो रेस्ट में ये कितना काम आसान है। अब आप ही में से कोई मुझे बताएगा इन्हीं कोड का इस्तेमाल करके कैसे मैं देखो दूसरी एपीआई कॉल कर दूंगा। सपोज एग्जांपल, मुझे रिकॉर्ड को क्या करना है, रिकॉर्ड में किसी पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड लाना है, तो एपीआई का पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड लाने का जो यूआरएल है उसका नाम है गेट स्टूडेंट बाय आईडी। क्या नाम है? Get student. अब इसमें मैंने आपसे फिर से बोला, आप और कुछ ध्यान मत दो, बस देखो रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपके लिए पहले से ही वो स्ट्रक्चर बना के रख देता हूं, या इसी स्ट्रक्चर में आ जाओ, इसी स्ट्रक्चर में जो आपका मैंने अभी बनाया है इसी को चेंज करते हैं। सबसे पहले आप में ये वाला तो बनाना ही है, हर कीमत में बनाना है कि नहीं बनाना है? Yes, sir. रिक्वेस्ट के अंदर मेथड कौन सा चूज करना है, नीचे वाला मैं डिलीट कर दूंगा अभी, लेकिन आपको बताना मैंने क्या, रिक्वेस्ट डॉट कौन सा चेक करना है हमें, हमारी वाली एपीआई, इसी वाली एपीआई में Get. मेथड कौन सा है, Get method. तो यानी कि वहां पे मेथड कौन सा चूज करेंगे? Get. वेरी गुड। अब ध्यान से देखना इसमें क्या डिफरेंस आएगा। इस पूरे यूआरएल को यहाँ से कॉपी करो, मेथड को चूज कर लो डॉट गेट, और इस मेथड के अंदर वो यूआरएल डाल देना। बस एक डिफरेंस आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखो। चाहो तो वो काम करो यहीं पे भी, या अलग से कर दो। यूआरएल डाल दिया, पूरा डाल दिया। Yes. आपको मैंने एक चीज और बताई थी जब उस दिन बता रहा था कि आपके यूआरएल में अगर कहीं पे भी करली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखी है, इसका मतलब स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे क्या पास करनी है, कोई Parameter. यस। तो यहाँ पे आपके यूआरएल में आपने देखा भी होगा, जब मैं यूआरएल आपका चाहे SOAP UI से डालता हूँ, तो SOAP UI में तरीका सिर्फ ये होता है, देखो दिखाता हूँ आपका, ये इसमें कहा गया, ये देखो कहाँ पे तक, कहाँ पे कदर पे, ये वाला है। हाँ जी, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो यहाँ पे पैरामीटर लास्ट में आता है, इसको देने का तरीका यूआई में क्या करता है, देखो ऐसे इनपुट ले लेता है ना, फॉर्म में ले लेता है। Yes, sir. एट द एंड आप अगर इसकी रॉ देखो, तो रॉ में देखो आखिरी में लग के जा रहा है, 1 लिख के जा रहा है, स्लैश करके 1 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. Yes, yes. तो यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट में ये हटाओ, जो आपको आईडी देनी यही दे दो, खत्म, किस्सा खत्म। मैंने किया अपने यूआरएल में, यहाँ पे अपने पाथ में ही जो करली ब्रैकेट था उसके यूआरएल में ही 1 लिख दो, जो आपका डेटा जो भी डालना है, करली ब्रैकेट को हटा के आईडी की वैल्यू लिख दिया। बाकी इसका मतलब ये करने के बाद ये जो डेटा आएगा उसमें किसको स्टोर करते हैं, किसमें, लेफ्ट में क्या रखते हैं, रेस्पॉन्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं? Yes. Yes. आपको दिखाता हूँ, ये देखो बाकी सब कुछ सेम, रेस्पॉन्स में डेटा आया, आपने उसमें से बॉडी निकाल के स्ट्रिंग के फॉर्म में रख ली और प्रिंट कर रहे हैं। ध्यान से देखना आपका नीचे डेटा क्या एक आईडी का आ रहा है, मैं चला रहा हूँ, ये देखो, इससे आसान मैंने आज तक देखा नहीं। आ रहा है उस आईडी का डेटा। Yes, sir. Yes. आपको कोई और टेस्ट करके भी दिखाता हूँ, यहां से देखो, आपका यहाँ पे ऑल स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, किसका दिखाऊं, किसका दिखाऊं, प्रदीपा का दिखाता हूँ। आईडी क्या है, 14, नेम क्या लिख के आ रहा है, प्रदीप। यानी कि आपके यूआरएल में केवल यहाँ पे जो, हाँ आईडी का जो डेटा है वो क्या था, आईडी कहाँ थी वहां पे, 14, यहाँ लिखता हूँ 14, कोड को चला रहा हूँ, देखना मजे से क्या रिजल्ट आ रहा है। इससे आसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, अगर आपने ये बात है कि जावा, जिसने जावा सेलेनियम थोड़ी सी मेरे से पढ़ी हुई है पहले, उसको चीजें जल्दी समझ में आ रही होंगी। सही कह रहा हूँ राहुल? अजय यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो जिसने जावा थोड़ी सी पढ़ी है पहले उसको जल्दी समझ में आता है, जिसने नहीं पढ़ी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे राहुल हो गए, इंद्रजीत हो गए, है ना, जिन्होंने जावा पढ़ी है, और लिखिता ने मुझसे जावा नहीं पढ़ी है, लेकिन लिखिता को आइडिया है जावा का, राइट लिखिता? Yes, sir. तो लिखिता आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. It is simple. इट इज वेरी सिंपल। मुझसे कोई कहे टूल खोलो, जितनी देर में तो मैं टूल खोलूंगा ना, मैं इतना काम तो स्टैंडर्ड है ही। मुझे याद भी क्या रखना है, याद करने का बहुत आसान तरीका,
इंटरनेट में तरीका नहीं मिलेगा। इंटरनेट में तरीका मैं बताऊं कैसे मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। उसमें लिखा होता है गिवन, इसी में लिखा होता है देन। क्यों लिखते हैं, आप परेशान हो जाओगे। मेरा तरीका इस्तेमाल करना, दुनिया की कोई एपीआई इससे आसानी से टेस्ट नहीं कर सकते आप। ये लाइन रट लो, रेस्ट स्टोर डॉट गिवन, ये हमेशा बनना है। फिर रिक्वेस्ट में दो चीजें डिसाइड करोगे, मेथड का नाम, जो वहां पे मेथड का नाम, यूआरएल यहां डालना है। अगर यूआरएल में कहीं करली ब्रैकेट है तो वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ रिस्पॉन्स लिख लो, आ गया। अब इसी में मैं और चीज करके दिखाता हूं, क्या, ध्यान से देखो। पुट बेस्ड एपीआई है, इसका काम है अपडेट स्टूडेंट करना। आप सिर्फ ये देखो जरूरत क्या है, मेथड का नाम Put. ये है यूआरएल, कॉपी कर लो भाई यूआरएल। मेथड का नाम पुट है, तो यहाँ पे ये मेथड गेट की जगह क्या होना चाहिए, ये देखो, आप PUT पुट लिख दो, नहीं तो आप डॉट करोगे तो पुट दिखेगा। और इस यूआरएल की जगह अपना यूआरएल डाल दो। हाँ जी, कुछ गलत बात कह रहा हूं, डाल दिया, यस सर। ये मेथड डाल दिया, ये यूआरएल डाल दिया। इस यूआरएल में क्यों यहाँ लिखा है करली ब्रैकेट में, क्योंकि पुट में आप क्या करने जा रहे हो, इसका मतलब है कोई आईडी डालनी है ना। इसकी जगह क्या डालनी है, आईडी। किसकी आईडी डालोगे मैं बताऊं, पुट का मतलब आप डेटा को, रिकॉर्ड को अपडेट करो, जिस आईडी का डेटा अपडेट करना है यहाँ उसकी क्या डाल दो, आईडी। हाँ जी, समझ में आया। Yes. सर। तो मैं आपको प्रदीपा की आईडी दिखाता हूँ। मैं आईडी डालता हूँ 14। मैं क्या करता हूँ, प्रदीपा वैसे मेरे स्टूडेंट का नाम है, प्रदीपा रियल में, तो प्रदीपा नहीं चेंज कर सकते हैं। मान लो प्रदीपा की एज मैंने गलती से डाल दी है 20, तो मैं इसे क्या करने जा रहा हूँ 19। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे डेटा डालेंगे 14, और ये आपके उसमें लिखा है कि जो आईडी अपडेट करनी। अब इस केस में मेथड हो गया, ये हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आ गई जो आपको डालनी है। क्या डालनी है, बॉडी। वेरी गुड। तो मेथड क्या चूज करना पड़ेगा, बॉडी। बॉडी नाम का मेथड ले लो और डबल कोट्स बना, पहले डबल कोट लिख दिया करो, लास्ट में सेमीकोलन। इसमें डालनी है बॉडी, इसमें डालनी है जो बॉडी के अंदर डेटा आपको डालना है। तो बॉडी के अंदर जो डेटा आपका सेम है वो सेम डाल दो, जो चेंज करने वाला है वो चेंज करके डाल दो। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं, क्या, ये देखो, ये आपका है एक्चुअल डेटा, कॉपी करो से एक्चुअल डेटा, यही आपका है। चाहो तो आप अपने उसमें भी देख लेना, यहाँ पे ये पे भी सेम तरीके से डेटा दे रखा है, सेम वही है ना। मैंने वहां से कॉपी कर लिया, आप यहाँ से कॉपी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे गए, बॉडी में डाला डेटा, प्लस करके डाला, ये डाल दिया डेटा। अब आप मुझे बताओ, आईडी सेम है, यहाँ पे एज 20 की जगह करनी है 19, कर दो, यहाँ एज के बीच में कर दो 19, कर दिया। हाँ जी, कर दिया कि नहीं कर दिया। यस। यस। अब Yes. मैं इसे चला दूं तो कोई मुझे बताएगा अभी इसमें कुछ कमी रह गई है कि नहीं रह गई। देखो मेरे सेशन को कोई ध्यान से, अजी वेरी गुड। किसने बोला है बात, इंद्रजीत ने। वेरी गुड, देखो इन्होंने बिल्कुल सही चीज पकड़ी, और मैं आपको दिखाता भी हूं। अगर मैं कोड को चला दूं तो देखो अपने यहाँ ध्यान से क्या होगा, देखो कोड चलाने पे। तो आपको सोपीआई से पढ़ा के यही फायदा होता है, इसने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, लेकिन आपको वो दिखा दूंगा जो आपने वहां से पकड़ा था। धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से चीजें लिखा होगा, उसको आप पकड़ लोगे। क्या कुछ और समझ में ना आए, एक चीज समझ आएगा, कहाँ लिखा है दिखाओ भाई इसको, ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अरे इसमें मेथड मैसेज प्रॉपर तो नहीं पा रहा हूँ, कहाँ लिखा है यार, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। अभी 2 मिनट MEDIA मीडिया दिख रहा नहीं तो अच्छा मीडिया तो मैंने दिया ही नहीं, तो और अच्छा एरर आएगा। इसमें आ रहा होगा इंटरनल सर्वर, देख रहा इंटरनल सर्वर कहीं लिख के आ रहा है। हाँ ये देखो, ये देखो क्यों आ रहा है इंटरनल सर्वर, क्योंकि सबसे पहले आपके जब भी आप अपना डेटा बॉडी भेजोगे तो उसमें कंटेंट टाइप का हेडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटेंट टाइप का क्या, हेडर में कंटेंट टाइप का एक पैरामीटर होना चाहिए। तो ये है नहीं, इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट को गड़बड़ कर रहा है। अब देखो मैं डालता कैसे हूं, इसी रिक्वेस्ट, सारा काम इस रिक्वेस्ट से होता है। इस रिक्वेस्ट में बॉडी डाल दी, इस रिक्वेस्ट में मेथड डाल दिया, इस रिक्वेस्ट में यार अब मुझे डालना था कंटेंट टाइप। ध्यान से देखना,
इसके बाद रिक्वेस्ट, और इसमें एक होता है फंक्शन जिसका नाम है हेडर। क्या नाम होता है? हेडर। हेडर वाले फंक्शन में दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखना। हेडर वाले फंक्शन में होती है दो चीजें। क्या दो चीजें होती है? इसको आप ये मत करना, आपको दो पैरामीटर वाला यूज करना, आपकी लाइफ आसान रहेगी। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा। हेडर में दो चीजें होती है। क्या? हर हेडर का एक नाम होता है और उसकी क्या होती है? वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना है हेडर का नाम, और यहाँ पे हेडर की क्या लिखनी है? Value. वैल्यू। तो अच्छा, यहाँ हेडर्स नहीं, हेडर हेडर। हाँ, अब देखना ध्यान से, फंक्शन का नाम है हेडर। पहले में डालते हैं कि हेडर का नाम क्या है और क्या वैल्यू है जो आप सेट करना चाहते हो। तो आपको दोनों गलतियां करके दिखाऊंगा। आपको खुद पता है सोपीआई में हेडर का नाम यहां से क्या होता है? कंटेंट टाइप। तो आपको मैं दिखाऊं कापे 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 कापे, यहाँ यहीं से दिखा देता हूँ। क्या दिख रहा है? कंटेंट टाइप। ये है कंटेंट टाइप हेडर। कॉपी करो। हेडर का नाम क्या है? कंटेंट टाइप। डाल दिया। Yes, sir. और यहाँ पे इसकी वैल्यू है application/xml। मैं जानबूझ के कॉपी तो कर रहा हूं, लेकिन यहां जाके उसको कर दूंगा चेंज। क्या कर दूंगा? इसको कॉपी पेस्ट ऐसे कर दिया। अरे आपको तो फालतू की हटा दो, ये दो लाइन। एक्चुअली जब दो लाइन में करता है तो अपने आप कर देता है, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दो लाइन में मत करो। ये कर, क्या लिखा है? वैल्यू application/xml। मैं जानबूझ के इसको लिख रहा हूँ JSON। ध्यान से देखना। अब इस एपीआई को फिर सेट करने जा रहा हूं। माने अब कंटेंट टाइप तो दे दिया मैंने, लेकिन गलत दिया। अब देखना यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा, जो मीडिया टाइप भी आना चाहिए, मीडिया टाइप क्यों नहीं दे रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? और कुछ तो गड़बड़ नहीं किया इसमें। मीडिया टाइप यहाँ पे भी आना चाहिए। कंट्रोल F डी, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। पुट भी कर दिया, 14 भी कर दिया, और कुछ तो नहीं है गड़बड़। एक्सएमएल भी किया, बॉडी भी किया, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट काम करने पहले इसको देखिए चला के एक्सएमएल में कि इसको यहाँ पे एरर अनसपोर्टेड मीडिया फाइल ही देनी चाहिए थी। वैसे अनसपोर्टेड भी नहीं आ रहा है। अनसपोर्टेड। पहले एक्सएमएल करके दिखाते हैं और कोई गलती तो नहीं कर रहे हम। लेट मी रन इट। नहीं, कोई और गलती कर रहा हूँ, उसमें कुछ और गलती है क्या? क्या लिखा है? सर जावा। रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी की जगह पे रिक्वेस्ट डॉट चाहिए ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। नहीं, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ गड़बड़ मैंने किया क्या? क्योंकि तेरा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों दे रहा है ये स्ट्रिंग? ये स्टूडेंट भी हमने पास कर दिया ऊपर में डेटा बॉडी में, इसकी वजह से नहीं। आईडी, एज, नेम, सब्जेक्ट, फिर नहीं, स्टूडेंट भी पास। वो पूरा इस फॉर्मेट में ही जाएगा। पूरा इस फॉर्मेट में ही जाएगा, लेकिन रुक जाओ 2 मिनट। काम पहले मैं काम करता हूँ। पहले मैं रिस्पॉन्स भी कर दिया है। हाँ, समझ गया। अरे यार देखो, लॉजिकल एरर है। मैंने रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे चली गई। हाँ और रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डेटा कब सेट कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट भेजने के। अभी आप लोग के सामने गलती पकड़ी, ये आपको समझाने के लिए ऊपर कर दिया। ये काम तो तब होना चाहिए जब कुछ सेट हो जाए, है कि नहीं? खुद ही लॉजिकल, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। अब ये चल जाएगा। अब वो भी चल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था। अगर मैं यहाँ पे, अभी तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है कहानी भाई साहब जी, ऐसा न करो। अब आपको अनसपोर्टेड मीडिया टाइप दिखाएगा। अरे भाई, इसने तो मेरी वाट लगा दी थी। आ गया अनसपोर्टेड। हाँ, आया अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। तो हम गलती क्या कर रहे थे? गलती ये कर रहे थे कि हमने रिक्वेस्ट पहले भेज दी, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद नीचे हम रिक्वेस्ट सब सेट कर रहे हैं, है ना? तो कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कर दो XML कंट्रोल S, और अब चला दो, और आपका आएगा, दिल थाम के बैठिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। आ गया? Yes, sir.
और आपको यहाँ से नहीं, डबल चेक करो, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, और चाहो तो आपकी गेट की एपीआई भी यहाँ से भी कॉल होती है, यहाँ से रिफ्रेश करो और मुझे बताना कि एज कितनी बन के आ गई। क्या एज आ रही है प्रदीपा की? आगे 19। तो आपको एपीआई को ऑटोमेट करने के लिए रेस्ट एश्योर्ड से मैं सही बताऊं, अभी इसमें ऐसा नहीं कि और पार्ट भी है, लेकिन सबसे मेन काम होता है क्या, रिक्वेस्ट को हिट करके डेटा को लेके आना। एक बार डेटा आ गया, इसके बाद इस पे होता है वैलिडेशन कि कौन सी चीज आ रही है, नहीं आ रही है, गलत आ रही है। लेकिन रिक्वेस्ट को हाई व्हाट यू विल से ट्रिगर करना कितना आसान है। समझ में आया? यस तो देखो, आपने अगर कॉन्सेप्ट समझा है तो आपका जावा से भी वही काम हो रहा है, सोफिया से भी हो रहा है, और पोस्टमैन में भी ऐसा ही काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताता हूँ जो आपकी लाइफ को आसान करेगी, ठीक है, सबके लिए, और स्पेशल ये क्वेश्चन से लिंक्ड है किसके, ये क्या लिखा, डॉट लॉग डॉट ऑल। अमित जी क्या पूछे मेरे को, आपको क्लियर नहीं हो रहा, डॉट लॉग डॉट ऑल क्या है? सर कहाँ पे पूछे? आप लोगों को मीटिंग चैट का मीटिंग नहीं दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इनसे बाद में पूछूंगा, इनका नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, श्रृंखला मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आपने श्रृंखला एक चीज पूछा था ना कि टोकन भी होता है, ये सब होता है, पूछा था श्रृंखला। यस सर। तो देखो, अगर आपका कभी टोकन होता है तो टोकन आपको बताएगा। टोकन हर जगह हो सकता है, कहाँ, बॉडी में भी टोकन हो सकता है और हेडर में भी। लेकिन असली में देखा जाए तो टोकन पता है कहाँ होता है, हेडर में। क्योंकि हेडर का मतलब क्या होता है, हिडन। हेडर का मतलब क्या होता है, हिडन। आपको हेडर में जो भी चीज होती है वो ना, वो छुप के भेजी जाती है, जिससे बॉडी में जाती है। तो हेडर बहुत सिक्योरिटी के साथ भेजाते हैं। हेडर का मतलब ये क्या, जो बॉडी में ना दिखाई दे। तो आपके में उसमें आपको डॉक्यूमेंट में बताएगा कि टोकन का क्या नाम है और टोकन की वैल्यू क्या है। तो आपके जनरली देखना टोकन का नाम वो देते हैं, जैसे बताइए क्या होता है, बियरर टोकन। सुना है आपने, शायद सुना हो। अच्छा सर। हाँ मतलब उन्होंने नाम ही टोकन रखा है। हाँ, तो अगर आपके टोकन का नाम ऐसे बताएगा, टोकन का नाम कोई हेडर में होगा तो टोकन का नाम ऐसे होता है। एक टोकन का नाम मैं आपको बताता हूँ, बड़ा कॉमन है, उसको बोलते हैं एपीआई की। क्या बोलते हैं? तो एपीआई आपके की। डॉक्यूमेंट में लिखा होगा एपीआई की है, और इसकी वैल्यू वही होगी जो आपको टोकन में आपका जो डेवलपर बोला है। इसकी वैल्यू कुछ अजीब सी होती है, ऐसे इनक्रिप्टेड होती है, ऐसे ऐसे। मेरी बात समझ गए? तो जब तक आप अपने हेडर में ये टोकन और इसकी वैल्यू नहीं भेजोगे, तब तक ये रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में देगा। कभी कभी मैंने ये भी देखा जो एपीआई टेस्ट की, उसमें टोकन का नाम वो क्या देते हैं, ऐसे टोकन ही देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो कि आपको यहाँ पे जो बताएगा नहीं, आपके डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा होगा, सपोज पोस्ट के लिए मुझे टोकन की जरूरत है, तो ऐसे बताएगा, सैंपल रिक्वेस्ट के साथ बताएगा। यहाँ पे ऐसे, मैं अपने डॉक्यूमेंट को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे देखो बताएगा टोकन, ऐसे बताएगा टोकन, और यहाँ पे टोकन की वैल्यू आपको पास करनी है। किसमें पास करनी है? अगर ढंग का बंदा होगा तो बताएगा हेडर में करनी है कि बॉडी में। अगर हेडर में होगी तो टोकन का नाम ऐसे लिखोगे, टोकन और वैल्यू कहाँ लिखोगे, हेडर में। और अगर नहीं हुई तो किसमें लिखोगे, बॉडी में। तो बॉडी में आपको पता है क्या तरीका होता है, बॉडी में तरीका होता है कि इसके बीच के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं वो आपको बताएगा। मतलब कहने का मतलब है डेटा कहाँ जाएगा वो आपको बताएगा, ऐसा नहीं है। और डेटा हमेशा कितनी जगह जा सकता है आपको खुद दिखाता हूँ। हेडर में जा सकता है ना, यस सर। बॉडी में जा सकता है, यस। और या यूआरएल के लास्ट। इन तीन जगह के अलावा इनपुट डेटा कहीं से जा ही नहीं सकता, चाहे वो टोकन हो, चाहे कोई भी तरह का डेटा हो। या तो यूआरएल में जाता है, इसको बोलते हैं पाथ परम। अगर पाथ परम मतलब अगर आपके पाथ में कोई पैरामीटर जाता है तो उसको बोलते हैं पाथ परम। अगर कोई हेडर में जाता है तो वो तरीका ये होता है, और बॉडी में डालना हो तो ये तरीका। इसके अलावा किसी एपीआई में और कोई जगह होती ही नहीं। समझ में आया? यस यस। तो इसके अलावा जो आपका स्टैंडर्ड देखे तो ये रिक्वेस्ट बनती है, रिक्वेस्ट से मेथड कॉल करके रिजल्ट में रिस्पॉन्स आता है, और बाकी जो जो जरूरत है वो रिक्वेस्ट बॉडी हेडर से सेट कर लो।
एक और चीज बस इंटरव्यू में है क्या, आपको बताता हूं कि जो कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि जनरली यहाँ पे यूआरएल में लोग क्या करते हैं, अगर आप यूआरएल में 14 डालना चाहो तो डाल दो, समझ रहे हो, नहीं तो उसको डालने का एक तरीका और क्या होता है, यहाँ पे वही लिखा रहता तो जो आपका लिखा था, क्या लिखा था, आईडी, क्या लिखा था, आईडी लिखा था, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ऐसे ही लिखा रहने दो। तो आपको जब यूआरएल का जब मेथड हिट होगा तो वो क्या समझ जाएगा, ये क्या है, इसमें कोई आईडी नाम का क्या है, पैरामीटर, क्या है आईडी नाम का पैरामीटर। तो ये पैरामीटर को चाहे या डायरेक्ट दे दो या रिक्वेस्ट में एक आपका मेथड होता है, मैं बार बार आपको चिल्ला के बोला था कि इसको बोलते हैं पाथ परम। तो यहाँ पे लिखो रिक्वेस्ट डॉट पाथ परम, और पाथ परम का मतलब सिंपल परम, आपका परम होगा, देखो पाथ परम, हाँ ये पाथ परम दिख रहा है, ये हाँ जी पाथ परम दिख रहा है, Yes, sir. परम पे क्लिक करो, पैरामीटर का नाम इसे बता दो डबल कोट्स में, आपके करली ब्रैकेट में पैरामीटर का नाम क्या लिखा है, आईडी लिखा है, हाँ जी पैरामीटर का नाम क्या है, आईडी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पाथ परम में पहला होता है पैरामीटर का नाम आईडी, और पैरामीटर वैल्यू में जो डालना है आप डाल दो 14 और यहाँ पर कर दो सेमीकोलन। तो चाहे ये लाइन लिख दो, इसको ऐसे ही रहने दो, या ये लाइन मत लिखो और डायरेक्ट 14 कहाँ लिख दो, यहाँ, दोनों सेम काम करेंगे। देखना चाहते हो तो फिर से देखो, और हम अपनी प्रदीपा जी की एज को वापस कर देते हैं 21, वो सेशन में है नहीं वरना बहुत गुस्सा करती, कभी 19 और कभी 20। लेट मी रन, ठीक है। जाते हैं रिफ्रेश करके दिखाते हैं, बताना कि 21 हो गई, हो गई 21। यस। तो ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं सिर्फ आपको कि आपकी श्रद्धा हो तो यूआरएल को जनरली मानते हैं कि यूआरएल को छेड़छाड़ मत करो, जो यूआरएल था उसको यहां रख दो। अगर यूआरएल में कहीं ऐसे ब्रैकेट करके कोई लिखा है ऐसे, तो इसकी वैल्यू सेट करने के लिए मेथड कॉल करो पाथ परम, यहाँ पैरामीटर का नाम और यहाँ पे रख दो। मेरी बात समझ में आई, और नहीं तो यहाँ पे भी अगर पूरा हटा के 14 लिख दोगे तो बात वही है, उसको करने का तरीका बता दिया। समझ में आया? यस सर। तो ये होती है कहानी। ये कहानी के बाद आप इसमें और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन जो रेस्ट एश्योर्ड का बेस एपीआई है, जो बेस है, आप यहाँ पे पहुंच गए। सही बताऊं मैंने आपको, रेस्ट एश्योर्ड मैंने आपको समझो आधा पढ़ा दिया, क्योंकि ये जो मैं आपको फ्रेम ये दिखा रहा हूँ ना, ये फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। और इसमें आपको दिखाऊं, देखो पुट में यही था जो आपको पढ़ाया, ये देखो पोस्ट में इसको यही था जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें और क्या बताने वाला है, और बताने वाला है कि इस पे वैलिडेशन कैसे करेंगे, कैसे इसमें वैलिडेशन होता है। मतलब डेटा आपका आया, अभी मैंने आपको बताया एज वाली फील्ड है कि नहीं है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, उसकी वैल्यू है कि नहीं है, ये सारे वैलिडेशन करते हैं। लेकिन वो वैलिडेशन किस पे करते हैं, जो रेस्पॉन्स आ जाता है। तो बचता सिर्फ जावा का कौन सा पार्ट है, इफ एल्स ये अगर टेस्टनजी पढ़ी है तो वो सिर्फ इतना पार्ट बचता है, वरना इतना ही आपका मेन क्या है, रेस्ट एश्योर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन आपको अपना जो प्रोफाइल बनाना है वो पूरा बनाना है। क्या बनाना है कि आपको रेस्ट एश्योर्ड भी आता है, आपको सोपीआई से टेस्टिंग करनी भी आती है, और थोड़ा मैं आपको, थोड़ा नहीं ज्यादा, थोड़ा पोस्टमैन भी बताऊंगा, ताकि आप ये पूरे प्रोफाइल में लिख सको। लेकिन अगर आप मेरे साथ सिंक करके चल रहे हो, इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना, जो पहली दूसरी तीसरी रिकॉर्डिंग जो अभी तक हो चुकी है, तीनों को ध्यान से देखना। आप कंबाइंड करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि एपीआई जो होती है वो एपीआई तो सेम ही होती है, टेस्ट करने के लिए टूल अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन टूल में क्या होगा, काम सारे ऑप्शन उसको देने तो वही पड़ेंगे ना, मेथड देने का तरीका, बॉडी देने का तरीका, हेडर देने का तरीका। समझ गए? Yes, sir. ऑनेस्टली बताना, कुछ आज पिछले 2 सेशन के कंपैरिजन में आज कुछ कंसोलिडेट होके कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कि एपीआई एक्चुअली क्या होती है, और उसको टेस्ट करने के लिए मेरे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए। पता होना चाहिए बॉडी क्या होती है, हेडर क्या होता है, पैरामीटर क्या होते हैं, बस हेडर क्या होता है, पैरामीटर क्या होते हैं, कंटेंट टाइप क्या होता है, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो उनको करने का तरीका अलग अलग चेंज हो जाएगा। और कुछ कल को कोई नया टूल आया, उसमें भी अगर आपको एपीआई मिली तो आप अपने उस नए टूल, मान लो टूल का नाम है प्रदीप,
स्लीप टूल में आप ढूंढोगे भाई मेथड कहाँ सेलेक्ट करें, यूआरएल कहाँ डालें, बॉडी कहाँ डालें, लेकिन अगर आपको पता होगा तभी तो ढूंढोगे। सही कह रहा हूँ लिखिता? Yes, sir. तो आपका जो मैंने आज सेशन बताया इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आपका पैरेलली देखा जाए तो अब मैंने आपको रेस्ट एश्योर्ड भी बता दिया, वो भी बता दिया। अब आगे की चीज क्या बताऊंगा, रेस्ट एश्योर्ड में आगे का ऑटोमेशन कैसे होता है, सोप में कैसे ऑटोमेशन करते हैं, अभी तो मैंने आपको ऑटोमेशन कुछ बताया नहीं, और रेस्ट और क्या कहते हैं रेस्ट में कैसे करते हैं, तो टूल से भी बताऊंगा और रेस्ट एश्योर्ड। तो अब हम कल करेंगे, कल का मतलब परसों हम क्या करेंगे, और अगर कल आप लोग अगर अवेलेबल हो तो कल सेशन ले लो। हाँ, अगर एवरीबडी, अगर सब लोग रेडी है तभी। अगर आप में से किसी को भी एक लगता है तो किसी दूसरे को मत देखना, सिंपल बोलना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, ऐसा नहीं, मैं फ्री हूं तो क्या सब फ्री हैं। तो आपको अगर कोई भी एग्री नहीं करता है, एक भी एग्री, तो मैं नहीं लूंगा, सब एग्री होंगे तो लेंगे कल, ठीक है? यस सर। और किसी को ये लग रहा है कि दूसरा बुरा मान जाएगा तो मुझे पर्सनली पिक कर देना, सर आप ही ना बोल दो, ठीक है? लेकिन अगर सब ओके बोलेंगे तभी सेशन हम लेंगे, कल मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? तो ये हुआ कहानी। और कहाँ के श्रृंखला आप ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है? तो आप अभी ये मत सोचो कि रेसिस्टोल में आपको तुरंत कूद जाना है। रेसिस्टोल मैंने इसलिए बताया कि बहुत अच्छा टाइम था मेरा, कि ऐसे टाइम में जहां मैं एक साथ सारे डिफरेंस दिखा सकूं सबको। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका प्रोफाइल तो इसमें भी बनेगा, सोप में भी, ठीक है? उसमें आपको कोई कोडिंग नहीं चाहिए, सिंपल सिंपल काम चाहिए, और कोडिंग आप धीरे धीरे सीखती जाओगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहली चीज होती है अपना कॉन्फिडेंस कोई भी मत छोड़ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप खुद देखोगे। अब आज के बाद अपना आर्टिकल पढ़ के देखना कोई बाहर का, अब आर्टिकल उठाना, सोप क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, आपको खुद ही पता लगेगा, हाँ जो मैंने सीखा उससे चीजें क्लियर हो, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे आप लोग के अपडेट के बेसिस पे, या तो मिलेंगे कल और नहीं तो मिलेंगे परसों, ठीक है? यस। तो आप अपनी अपनी इच्छा मुझे डाल सकते हो पर्सनली, और इच्छा क्या मतलब, जिसको नो बोलना है वो धीरे से नो डाल देना मुझे कि सर कल मत लेना, मुझे रिवाइज करना, तो मैं नहीं लूँ। और अगर मुझे कहीं कोई नो नहीं मिला तो मैं खुद ही अपडेट करूंगा कल से, ठीक है? चलिए फिर बाइंड अप करते हैं, ओके? यस सर। और मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ आपको थोड़ी देर में, और वही गूगल ड्राइव में डालूंगा, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, Good night all. Thank you, sir. बाय बाय।